تو آج ہم اسٹیون ہاکنگ کی شرح آفاق کتاب A Brief History of Time کے بالکل شروع یعنی پیش لفظ اور پہلے باب پر بات کر رہے ہیں۔ جی بالکل، اور ہاکنگ نے شروع ہی میں پیش لفظ میں اپنا مقصد بڑا واضح کر دیا تھا۔ ہاں، کہ کائنات کے جو بڑے گہرے سوال ہیں نا، جی وہ صرف سائنسدانوں کے لیے نہیں ہیں۔ بالکل وقت کیا ہے، ہم کہاں سے آئے، یہ سب ہم سب جاننا چاہتے ہیں۔ بالکل، اور شاید یہی وجہ تھی کہ یہ کتاب اتنی زیادہ کامیاب ہوئی، بیسٹ سیلر رہی، کئی زبانوں میں ترجمہ ہوئی، لوگ واقعی ان سوالات میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اچھا، پیش لفظ میں انہوں نے کتاب کو اپڈیٹ کرنے کا بھی ذکر کیا تھا؟ جی ہاں، کیونکہ سائنس تو رکتی نہیں، نئی چیزیں سامنے آ رہی تھیں، ہاں۔ جیسے کیا کہتے ہیں ورم ہولز، ٹائم ٹریول کا امکان، اور ایک مکمل یونیفائیڈ تھیوری کی تلاش جو ہر چیز کی وضاحت کر سکے۔ اور وہ COB سیٹلائٹ کا ذکر، وہ کیا تھا؟ وہ بہت اہم تھا۔ CROB نے کائنات کی بالکل ابتدائی روشنی یعنی کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ میں بہت ہی ہلکے سے اتار چڑھاؤ دیکھے۔ اچھا، یوں سمجھیں کہ یہ کائنات کی پیدائش کے وقت کے نشانات ہیں، اور یہ اس خیال کو بھی سہارا دیتے ہیں کہ شاید کائنات کی کوئی سرحد یا کنارہ نہیں ہے۔ تو پیش لفظ ایک طرح سے اسٹیج سیٹ کرتا ہے۔ جی پھر پہلا باب آتا ہے کائنات کے بارے میں ہمارا تصور۔ جی، اور یہ باب ہمیں ماضی میں لے جاتا ہے، ارسطو سے شروع ہوتا ہے، تقریباً 340 قبل مسیح۔ وہ مانتے تھے کہ زمین گول ہے۔ ہاں، اور اس کے دلائل بھی دیے، جیسے چاند گرہن کے وقت زمین کا سایہ ہمیشہ گول ہوتا ہے، یا جیسے جیسے آپ شمال کی طرف جائیں قطبی ستارہ اونچا ہوتا جاتا ہے۔ صحیح۔ لیکن وہ یہ بھی مانتے تھے کہ زمین کائنات کا مرکز ہے، اور باقی سب کچھ، چاند، سورج، سیارے، ستارے، وہ شفاف کروں میں اس کے گرد گھومتے ہیں۔ یہ بطولمیوس والا ماڈل۔ جی، بطولمیوس نے اسے مزید بہتر کیا، اور یہ ماڈل تقریباً 1500 سال تک چلا۔ چرچ نے بھی اسے قبول کر لیا تھا۔ لیکن پھر تبدیلی آئی، کوپرنکس۔ ہاں، 1514 میں انہوں نے کہا نہیں، زمین نہیں، سورج مرکز میں ہے، اور زمین باقی سیاروں کی طرح اس کے گرد گھومتی ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی اس وقت کے حساب سے۔ بہت بڑی، اسی لیے شاید شروع میں نام بھی ظاہر نہیں کیا۔ پھر آئے گیلیلیو اور کیپلر۔ گیلیلیو کی دوربین۔ بالکل، گیلیلیو نے دوربین سے دیکھا کہ مشتری کے گرد چاند گھوم رہے ہیں، مطلب ہر چیز زمین کے گرد نہیں گھومتی۔ اور کیپلر نے کہا کہ سیاروں کے مدار گول نہیں بلکہ بیضوی یعنی انڈے جیسے ہیں، اور اس سے مشاہدات بالکل ٹھیک ٹھیک میچ ہو گئے۔ یعنی ماڈل بہتر ہوتا گیا، پہلے زمین مرکز، پھر سورج مرکز، پھر مدار بھی گول نہیں، بیضوی۔ جی، اور پھر وہ شخص آیا جس نے بتایا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، نیوٹن۔ آئزک نیوٹن، پرنسپیا میتھمیٹیکا، 1687۔ جی ہاں، نیوٹن نے حرکت کے قوانین اور سب سے بڑھ کر کشش ثقل یعنی گریوٹی کا قانون دیا۔ وہی سیب والی کہانی۔ ہاں، وہ کہانی مشہور ہے، لیکن اصل بات یہ تھی کہ نیوٹن نے دکھایا کہ وہی قوت جو سیب کو زمین پر کھینچتی ہے، وہی چاند کو زمین کے گرد اور سیاروں کو سورج کے گرد گھماتی ہے۔ اس ایک قانون نے سب کچھ بدل دیا۔ بہت کچھ۔ وہ آسمانی کروں کا تصور ختم ہو گیا، ستارے بس دور دراز کے سورج بن گئے۔ لیکن ایک سوال پھر بھی تھا، اگر ہر چیز ہر دوسری چیز کو کھینچ رہی ہے تو ستارے آپس میں ٹکرا کیوں نہیں جاتے؟ نیوٹن کا خیال تھا کہ اگر کائنات لامحدود ہو اور ستارے ہر طرف یکساں پھیلے ہوں تو ہر ستارے پر ہر طرف سے برابر کھنچاؤ ہوگا، تو وہ کہیں گرے گا نہیں۔ مگر یہ بات کچھ ادھوری سی لگتی تھی، اور ایک اور مسئلہ تھا جسے بعد میں آلبرٹس پیراڈاکس کہا گیا۔ وہ کیا تھا؟ کہ اگر کائنات لامحدود ہے اور ہمیشہ سے ہے، اور اس میں لامحدود ستارے ہیں، تو رات کو آسمان اتنا تاریک کیوں ہے؟ اسے تو ہر طرف سے روشن ہونا چاہیے تھا۔ ہاں، یہ تو سوچنے والی بات ہے۔ اس کا کیا جواب نکلا؟ ایک ممکنہ جواب یہ تھا کہ شاید ستارے ہمیشہ سے نہیں چمک رہے، مطلب کائنات کا ایک آغاز تھا۔ آغاز؟ یہ تو پھر پرانے خیالات اور مذہبی تصورات سے ملتا جلتا ہے۔ جی، بہت سے قدیم فلسفوں اور مذاہب میں کائنات کے آغاز کا تصور ہے۔ سینٹ آگسٹن نے تو یہ دلیل بھی دی تھی کہ اگر کائنات ہمیشہ سے ہوتی تو تہذیب اب تک بہت زیادہ ترقی کر چکی ہوتی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وقت خود کائنات کے ساتھ شروع ہوا۔ بالکل، ان کا نقطہ تھا کہ یہ پوچھنا کہ خدا نے کائنات بنانے سے پہلے کیا کیا
बेमायनी है क्योंकि पहले का वक्त था ही नहीं। ये गहरी बात है। जी। दूसरी तरफ अरस्तु जैसे फलसफी अबदी कायनात के कायल थे। कॉन्ट ने भी इस पर बहस की कि आगाज और अबदियत दोनों के दलाइल में तजादात हैं। तो ये बहस चलती रही, फिर 20वीं सदी आई और एडविन हबल 1929 में उन्होंने एक इनकलाबी दरियाफ्त की। क्या दरियाफ्त? उन्होंने देखा कि दूर की कहकशाएं हमसे दूर जा रही हैं और जितनी दूर हैं उतनी ही तेजी से दूर जा रही हैं। मतलब कायनात फैल रही है। तो अगर हम वक्त में पीछे जाएं तो कायनात छोटी, गर्म और ज्यादा कसीफ होती जाएगी। और अगर बहुत पीछे जाएं तो माजी में एक ऐसा लम्हा रहा होगा जब सारी कायनात, सारा मादा और तवानाई एक नाकाबिल तसव्वुर हद तक छोटे, गर्म और कसीफ नुक्ते में बंद थी और फिर वो फैलना शुरू हुआ। बिग बैंग? यही बिग बैंग है। ये सिर्फ एक धमाका नहीं, ये वक्त और स्पेस का आगाज था। तो इससे कायनात की उम्र का अंदाजा लगा, तकरीबन 14 अरब साल। जी, मौजूदा अंदाजा यही है। और बिग बैंग से पहले क्या था, ये सवाल फिर बेमानी हो जाता है क्योंकि वक्त ही वहां से शुरू हुआ। ये सब हमें बाबे अव्वल के आखिर में साइंस के तरीके कार पर ले आता है। हॉकिंग कहते हैं कि साइंसी नजरिया क्या होता है? उनके मुताबिक एक अच्छा नजरिया एक मॉडल होता है, कुछ उसूलों के साथ जो मुशाहिदात की वजाहत करता है और ऐसी पेशगोइयां करता है जिन्हें टेस्ट किया जा सके, जिन्हें गलत साबित किया जा सके। मतलब कोई भी नजरिया हतमी सच्चाई नहीं होता? नहीं, कार्ल पॉपर का भी यही फलसफा था। नजरियात हमेशा आर्जी होते हैं, उन्हें बेहतर किया जा सकता है या रद्द किया जा सकता है अगर कोई नया मुशाहिदा उनसे मेल न खाए। जैसे न्यूटन का नजरिया आइंस्टाइन के नजरिए से बेहतर हुआ। और अब साइंस का बड़ा मकसद क्या है? एक मुकम्मल मुत्तहिद नजरिया, यूनिफाइड थियरी। वो क्या चीज है? देखें, हमारे पास अभी दो बड़े कामयाब नजरियात हैं। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी, जो कशिश सकल और बड़ी चीजों जैसे सियारे, सितारे, कहकशाएं को समझाती है। सही। और दूसरी है क्वांटम मैकेनिक्स, जो बहुत छोटी चीजों, एटम, जर्रात और बाकी 3 बुनियादी कुव्वतों को समझाती है। तो मसला क्या है? मसला ये है कि ये दोनों आपस में मेल नहीं खाते, खास तौर पर शदीद हालात में, जैसे बिग बैंग के वक्त या ब्लैक होल के अंदर। इन दोनों को मिलाने वाला नजरिया, जिसे क्वांटम ग्रेविटी कहते हैं, अभी तक नहीं मिल सका। तो ये आज की फिजिक्स का सबसे बड़ा चैलेंज है। जी बिल्कुल। एक ऐसा नजरिया जो कायनात की हर चीज को बड़े से बड़े और छोटे से छोटे पैमाने पर एक ही छतरी के नीचे बयान कर सके। तो खुलासा ये हुआ कि हॉकिंग हमें पेशलफ्ज में दावत देते हैं कि आओ कायनात को समझें, और पहला बाब हमें दिखाता है कि ये समझ वक्त के साथ कैसे बदली है। कछुओं पर टिकी जमीन से लेकर बिग बैंग तक का सफर। बिल्कुल, इल्म का एक मुसलसल इर्तिका। और आखिर में एक सवाल जहन में आता है, जिस तरह आज हम अरिस्तु के मॉडल को या कछुओं वाली कहानी को देखते हैं, क्या मुमकिन है कि आज जो नजरियात हमें इतने पक्के लगते हैं, जैसे जनरल रिलेटिविटी या क्वांटम मैकेनिक्स, हाँ, क्या आने वाली नस्लें उन्हें भी नामुकम्मल या शायद थोड़ा अजीब समझेंगी? ये तो वक्त ही बताएगा। शायद इल्म का सफर कभी खत्म ना हो। अच्छा, तो आज हम स्टीफन हॉकिंग की किताब के दूसरे बाब, मकानो ज़मान, में गहराई तक जा रहे हैं। पिछली बार हमने देखा था कि कायनात पर हमारे ख्यालात कैसे बदले। जी बिल्कुल। लेकिन ये बाब, ये तो हमारे रोजमर्रा के वो जो बदीही तसव्वुरात है ना, उनको चैलेंज करता है। सही। ये बाब असल में न्यूटन के मुतलक मकानो ज़मान के तसव्वुर से हमें आइंस्टाइन की दुनिया में ले जाता है, जहां सब कुछ जुड़ा हुआ है, लचकदार है, जामिद नहीं है। बिल्कुल। और इस गुफ्तगू का मकसद भी यही है कि समझें कि कैसे रोशनी की रफ्तार, इजाफियत, ये चीजें हमारे आम फहम को कैसे चैलेंज करती हैं। और ये सवाल कि क्या वक्त वाकई सबके लिए एक रफ्तार से गुजरता है, ये तो बड़ा बुनियादी सवाल है। जी। और क्या खला बस खाली जगह है, या यूं समझे मादा और तवानाई की मौजूदगी में मुड़ भी सकता है? ये बाब हमें 4 जिहतों में सोचने पर उकसाता है। शुरुआत तो अरस्तु से हुई थी। उनका ख्याल था कि चीजों की कुदरती हालत सुकून है। जी, और हरकत के लिए कोई ना कोई कुव्वत चाहिए। मंतकी लगता है ना। और ये भी कि भारी चीजें हल्की चीजों से तेज गिरती हैं।
हाँ, लेकिन ये सब मतलब कि सिर्फ सोच विचार पर मबनी था, कोई तजुर्बाती सबूत नहीं था। और वहीं फिर गैलीलियो आए। बिल्कुल, वो पिज़ा टावर वाली कहानी, वो तो शायद सच ना हो, लेकिन उन्होंने वो जो ढलवान सतह पर तजुर्बात किए, हाँ, गेंदों वाले। जी, मुख्तलिफ वजन की गेंदों को लुढ़काकर, और साबित किया कि अगर हवा की मज़ाहमत को हटा दें तो वजन से फर्क नहीं पड़ता, सब चीजें एक ही शरह से अपनी रफ्तार बढ़ाती हैं। अच्छा, यानी मुशाहिदे ने सदियों पुरानी सोच बदल दी। वो चांद वाला तजुर्बा भी तो था। हाँ, खलाबाज डेविड स्कॉट का एक पंख और एक हथौड़ा, चांद पर हवा तो है नहीं, तो दोनों एक साथ गिरे, कमाल था वो। इसी बुनियाद पर फिर न्यूटन ने अपने कवानीन बनाए, हरकत के कवानीन। जी, पहला कानून तो वही कि जिस्म अपनी हालत बरकरार रखता है जब तक कोई बैरूनी कुव्वत ना हो। सुकून या सीधी हरकत। बिल्कुल। और दूसरा कानून वो एक्सेलरेशन वाला कि कुव्वत ज्यादा तो एक्सेलरेशन ज्यादा, लेकिन कमियत यानी मास ज्यादा तो एक्सेलरेशन कम। F = ma। और सबसे मशहूर कशिश सकल का कानून कि हर जिस्म दूसरे को खींचता है। जी, और ये खिंचाव उनकी कमियतों पर और उनके दरमियान फासले पर मुनहसर है, फासले के मुरब्बा के बिलक्स मुतनासिब। इन कवानीन का एक गैर मुतवक्का नतीजा भी निकला था ना, मुतलक सुकून के बारे में। हाँ, कि कायनात में कोई मुतलक रुकी हुई जगह नहीं है। वो ट्रेन वाली मिसाल बहुत अच्छी है। पिंग पोंग वाली? जी, ट्रेन में खेलें या प्लेटफॉर्म पर, गेंद के कवानीन तो वही रहेंगे। तो आप बता ही नहीं सकते कि असल में हरकत कौन कर रहा है। मतलब खला में कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं है। ये तो न्यूटन के लिए भी परेशानी की बात होगी। जी, वो खुद इस पर यूं समझे मुतफक्किर थे। लेकिन एक चीज पर तो वो और अरस्तू भी मुत्तफिक थे, मुतलक वक्त। हाँ, कि वक्त एक दरिया की तरह है, सबके लिए हर जगह एक ही रफ्तार से बह रहा है। ये ख्याल बड़ा मतलब आरामदेह है, लेकिन ये दुरुस्त नहीं, खास तौर पर जब आप रोशनी की रफ्तार के करीब जाते हैं। अच्छा, तो रोशनी की रफ्तार का मामला कब सामने आया? इसका अंदाजा तो ओले रोमर ने 1676 में ही लगा लिया था कि ये महदूद है। फिर 1865 में मैक्सवेल की थियरी आई। उसने पेशगोई की कि रोशनी एक खास मुस्तकिल रफ्तार से सफर करती है। जी, लेकिन सवाल ये पैदा हुआ कि किस चीज के निस्बत से मुस्तकिल। यही वो ईथर का नजरिया आया। एक फर्जी मीडियम जो पूरे खला में भरा हुआ है। बिल्कुल, जैसे आवाज हवा में सफर करती है। लेकिन फिर वो मशहूर माइकलसन मोरले तजर्बा हुआ 1887 में, और उसने ईथर को नहीं पाया। जी, वो नाकाम रहा। नतीजा ये निकला कि रोशनी की रफ्तार हर सिमत में, हर देखने वाले के लिए एक ही है, चाहे जमीन ईथर में से गुजर रही हो या नहीं। ये तो वाकई अजीब बात थी। अगर रोशनी की रफ्तार सबके लिए एक है तो फिर कुछ और बदलना होगा। बिल्कुल, और वही कुछ और आइंस्टाइन ने बताया 1905 में अपने खुसूसी नजरिए इजाफियत में। बुनियादी मफरूजा क्या था? कि साइंस के कवानीन बशमूल रोशनी की रफ्तार तमाम आजादाना हरकत करने वाले मुबसिरीन के लिए यकसा हैं। जी, इस एक बात ने ईथर की जरूरत खत्म कर दी। और मुतलक वक्त का तस्वर भी खत्म हो गया। जी बिल्कुल, वक्त मुतलक नहीं रहा। ये सबसे बड़ा धचका था। इसके नताइज तो सुना है बड़े हैरान कुन थे। E = mc²। हाँ, पहला तो यही कि कमियत और तवानाई एक ही चीज के दो रुख हैं। मादा तवानाई की एक बहुत ही मुर्तकिस शक्ल है। और ये कि कोई चीज रोशनी से तेज नहीं चल सकती। जी, क्योंकि जैसे रफ्तार बढ़ती है, कमियत भी बढ़ती जाती है। रोशनी की रफ्तार पर कमियत लामहदूद हो जाएगी, जिसके लिए लामहदूद तवानाई चाहिए, जो मुमकिन नहीं। और सबसे अहम, वक्त का मामला कि वक्त मुतलक नहीं है। आप जितनी तेजी से हरकत करेंगे, आपके लिए वक्त उतना ही आहिस्ता गुजरेगा। इसे टाइम डायलेशन या वक्त का फैलाव कहते हैं। कमाल। तो मकान और जमान अलग नहीं रहे? नहीं, वो एक चार जहती साख्त मकान जमान या स्पेस टाइम में आपस में बुने हुए हैं। लेकिन एक मसला था, खुसूसी इजाफियत न्यूटन के कशिशे सकल के कानून से मेल नहीं खाती थी। सही, न्यूटन का कानून कहता था कि कशिशे सकल का असर फौरन होता है, फासले से कता नजर, जबकि खुसूसी इजाफियत कहती थी कि कोई चीज रोशनी से तेज नहीं चल सकती, हत्ता के मालूमात भी। तो फिर इस तजाद का हल कैसे निकला? आइंस्टाइन ने इस पर मजीद काम किया, तकरीबन 10 साल, और 1915 में पेश किया उमूमी नजरिया इजाफियत।
یہ اس سے بھی زیادہ انقلابی تھا؟ اوہ بہت زیادہ. اس نے کہا کہ کشش ثقل اصل میں کوئی قوت ہے ہی نہیں. قوت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ سیارے سورج کے گرد کیوں گھومتے ہیں؟ آئنسٹائن نے کہا کہ یہ مکان زمان کا خم ہے. مادہ اور توانائی جیسے سورج اپنے ارد گرد کے مکان زمان کو خم دے دیتے ہیں، بالکل جیسے کوئی بھاری گیند ٹریمپولین کو جھکا دیتی ہے. اچھا. اور سیارے جیسے زمین اس خمیدہ مکان و زمان میں سیدھا چلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کیونکہ مکان و زمان خود خمیدہ ہے تو ان کا راستہ ہمیں ایک مدار کی شکل میں نظر آتا ہے. وہ اصل میں مختصر ترین راستہ یعنی جیوڈیزی اختیار کرتے ہیں. واہ، تو کشش ثقل اصل میں جیومیٹری ہے، مکان و زمان کی شکل ہے. بالکل. اور اس کا مطلب تھا کہ یہ روشنی کو بھی موڑ سکتی ہے، جس کی تصدیق پھر ہوئی 1919 کے سورج گرہن میں. جی ہاں، دور کے ستاروں کی روشنی سورج کے قریب سے گزرتے ہوئے واقعی مڑ گئی، بالکل اتنی ہی جتنی تھیوری نے پیشگوئی کی تھی. اور وقت کے بارے میں بھی کچھ پیش گوئی تھی. جی، کہ بھاری اجسام کے قریب جہاں کشش ثقل زیادہ ہے وہاں وقت آہستہ گزرتا ہے. اس کی بھی تصدیق ہوئی 1962 میں. واٹر ٹاور تجربہ. ہاں، اور آج کل جو جی پی ایس سسٹم ہے نا، اسے صحیح کام کرنے کے لیے اس اثر کو یعنی وقت کے آہستہ گزرنے کو حساب میں رکھنا پڑتا ہے، ورنہ وہ غلط پوزیشن بتائے گا. یہ تو روزمرہ زندگی پر اثر انداز ہو رہا ہے. وہ جڑواں تضاد ٹوئنز پیراڈاکس کا کیا معاملہ ہے؟ وہ اسی ٹائم ڈائلیشن کا ایک یوں سمجھے فکری تجربہ ہے. ایک جڑواں زمین پر رہے، دوسرا تیز رفتار خلائی جہاز میں سفر کر کے واپس آئے. تو واپس آنے والا جوان رہ جائے گا؟ جی، کیونکہ اس نے تیز حرکت کی، اس کے لیے وقت آہستہ گزرا. یہ کوئی تضاد نہیں بلکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہر شخص کا اپنا ذاتی وقت ہوتا ہے، مطلق وقت نہیں ہے. تو خلاصہ کریں تو یہ باب تو ہمارے مکان اور زمان کے بارے میں سب کچھ بدل دیتا ہے. بالکل. وقت کوئی عالمی گھڑی نہیں، مکان کوئی خالی سٹیج نہیں. یہ دونوں ایک متحرک، لچکدار کائناتی تانے بانے کا حصہ ہیں جسے حرکت اور کشش ثقل شکل دیتے ہیں. جی، آئنسٹائن کی بصیرت نے فزکس کا ایک نیا دور شروع کیا. اب ٹائم ٹریول، بلیک ہولز، کائنات کا آغاز یہ صرف کہانیاں نہیں رہیں بلکہ سائنسی تحقیق کے سنجیدہ سوالات بن گئے ہیں. بالکل. مکان اور زمان اب کائنات سے الگ نہیں بلکہ اسی کا حصہ ہیں، اس پر اثر ڈالتے ہیں اور اس سے متاثر ہوتے ہیں. تو اگلی بار ہم اس سے بھی گہرائی میں جائیں گے، پھیلتی ہوئی کائنات کا جائزہ لیں گے. یہ سفر تو ابھی جاری ہے. جی، اور ایک آخری سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتا ہوں. اگر مادہ اور توانائی مکان و زمان کو خم دے سکتے ہیں تو کیا بہت ہی زیادہ مادہ جیسے کسی بلیک ہول کے مرکز میں، کیا وہ مکان و زمان کی ساخت کو مکمل طور پر مطلب کہ توڑ بھی سکتا ہے؟ یہ تو بہت گہرا سوال ہے. جی، یہ وہ سوالات ہیں جو ہمیں کائنات کی انتہاؤں تک لے جاتے ہیں. اچھا، تو پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا کہ زمان و مکان یہ صرف خالی سٹیج نہیں ہے بلکہ ایک زندہ حقیقت ہے جسے مادے اور توانائی شکل دیتے ہیں. جی بالکل. اور اب باب 3 میں اسٹیفن ہاکنگ ہمیں آپ کہہ لیں نظریے سے مشاہدے کی دنیا میں لے جا رہے ہیں. ہاں، اور یہ مشاہدہ 20ویں صدی کی شاید سب سے بڑی دریافتوں میں سے ایک ہے کہ کائنات ساکن نہیں ہے، پھیل رہی ہے. بالکل، یہ پھیل رہی ہے. ہبل کے مشاہدات، ریڈ شفٹ، بگ بینگ تھیوری، یہ سب اس باب میں ہے. کیسے پتا چلا کہ کہکشائیں ایک دوسرے سے دور بھاگ رہی ہیں؟ اور اس دریافت کا مطلب صرف ستاروں یا کہکشاؤں تک محدود نہیں تھا. اس نے تو وقت اور جگہ کی ابتدا کے بارے میں ہمارے خیالات ہی بدل دیے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے شروع ہوا. پہلی بات تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہماری اپنی کہکشاں ملکی وے یہ کائنات میں واحد نہیں ہے. جی، یہ آج ہمیں عام سی بات لگتی ہے، لیکن ایک وقت تھا جب یہ معلوم نہیں تھا. 1924 میں ایڈون ہبل نے یہ ثابت کیا کہ آسمان پر نظر آنے والے وہ دھندلے سے دھبے وہ اصل میں دور دراز کی کہکشائیں ہیں. اور ان کے درمیان بہت وسیع فاصلے ہیں. پھر سوال تھا کتنی دور؟ ہبل نے اس کے لیے ستاروں کی چمک کا استعمال کیا. ہاں، کچھ خاص قسم کے ستارے ہوتے ہیں جن کی اصل روشنی یعنی لیومینوسٹی ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے، جیسے کوئی سٹینڈرڈ واٹ کا بلب ہو. بالکل. تو زمین سے وہ کتنے مدھم نظر آتے ہیں اس سے ان کا فاصلہ پتہ چل جاتا ہے. اچھا،
तो फासले मालूम हो गए। उसके बाद आई रोशनी की तैफ यानी स्पेक्ट्रम की। देखें, जब रोशनी को प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो अपने रंगों में बिखर जाती है, रेनबो की तरह। जी, और सितारों की रोशनी के इस स्पेक्ट्रम से उनका टेम्परेचर, उनमें कौन से केमिकल हैं, ये सब पता चलता है। ठीक। लेकिन 1920 की दहाई में माहिरीन फल्कियात ने दूसरी गैलेक्सियों के सितारों के स्पेक्ट्रम में एक अजीब चीज नोट की। कुछ रंग गायब थे, वैसे ही जैसे हमारी कहकशां के सितारों में होते हैं, मगर क्या? वो सारे रंग स्पेक्ट्रम के सुर्ख सिरे की तरफ यानी रेड एंड की तरफ थोड़े से खिसके हुए थे, शिफ्ट हुए थे। सुर्ख सिरे की तरफ? इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये डॉपलर इफेक्ट वाली बात है, जैसे एम्बुलेंस की आवाज बदलती है? बिल्कुल वही। इसे डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। जैसे दूर जाती हुई एम्बुलेंस की सायरन की आवाज की पिच कम हो जाती है, यानी आवाज की लहरें लंबी हो जाती हैं। हाँ। इसी तरह अगर कोई कहकशां हमसे दूर जा रही हो तो उससे आने वाली रोशनी की लहरें भी खिंचकर लंबी हो जाती हैं, और लंबी रोशनी की लहरें हमें ज्यादा सुर्ख नजर आती हैं। तो रेड शिफ्ट का मतलब है कि वो चीज हमसे दूर जा रही है। बिल्कुल। और हबल ने जो देखा वो ये था कि तकरीबन तमाम कहकशाएं रेड शिफ्टेड हैं। वो सब हमसे दूर जा रही हैं। सब की सब? तकरीबन सब। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि जो कहकशाएं जितनी ज्यादा दूर हैं, वो उतनी ही तेजी से दूर जा रही है। जी, ये सीधा सीधा सबूत था कि कायनात फैल रही है। ये तो नाकाबिले यकीन दरियाफ्त थी। इसने तो सब कुछ बदल दिया होगा। न्यूटन, आइंस्टाइन, वो तो साकिन कायनात मानते थे ना? हाँ, सबके लिए ये बहुत बड़ा धचका था। आइंस्टाइन ने तो अपनी थियरी में एक कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट भी डाल दिया था ताकि कायनात को फैलने से रोका जा सके। अच्छा? जी, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एक रूसी साइंसदान अलेक्जेंडर फ्रीडमैन ने हबल की इस दरियाफ्त से भी पहले 1922 में ही, यानी मुशाहिदे से पहले, हाँ, आइंस्टाइन की अपनी जनरल रिलेटिविटी की बुनियाद पर यह पेशगोई कर दी थी कि कायनात साकिन नहीं हो सकती। इसे या तो फैलना होगा या सिकुड़ना होगा। कमाल है, यानी थियरी ने पहले ही इशारा दे दिया था। बिल्कुल। फ्रीडमैन के मॉडल्स दो सादा मफरूजों पर मबनी थे कि कायनात हर तरफ से एक जैसी दिखती है, और ये बात आप कहीं से भी देखें सच होगी। और उन मॉडल से क्या नतीजा निकला? यही कि अगर कायनात फैल रही है तो माजी में जरूर एक ऐसा वक्त आया होगा जब सब कुछ एक नुक्ते पर जमा था, इंतहाई कसीफ, इंतहाई गर्म। बिग बैंग? जी, जिसे हम आज बिग बैंग कहते हैं। और फिर एक और सबूत मिला, वो भी इत्तेफाकन। हाँ, 1965 में दो अमरीकी साइंसदान पेंजियस और विल्सन बेल लैब्स में एक बहुत हसास माइक्रोवेव एंटीना पर काम कर रहे थे। जी। उन्हें हर सिम्ट से एक मुस्तकिल हल्की सी रेडिएशन मिल रही थी, एक तरह का शोर। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये कहाँ से आ रहा है। और वो क्या निकला? वो दरअसल बिग बैंग की बची हुई हरारत थी, कायनात के इब्तिदाई दौर की गर्मी जो अब ठंडी होकर माइक्रोवेव्स की शक्ल में हर तरफ फैली हुई है। इसे कहते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB। वाओ, ये तो बहुत बड़ा सबूत था। जी हाँ, इसने बिग बैंग मॉडल को बहुत मजबूत कर दिया। कुछ मुतबादिल नजरियात थे जैसे स्टेडी स्टेट थ्योरी, लेकिन रेड शिफ्ट और खास तौर पर CMB के शवाहिद ने बिग बैंग को ही सही साबित किया। और फिर पेनरोज और हॉकिंग ने रियाजी से भी साबित किया कि अगर जनरल रिलेटिविटी दुरुस्त है तो बिग बैंग सिंगुलैरिटी लाजमी है। जी, इन्होंने साबित किया कि माजी में एक ऐसा नुक्ता जरूर होना चाहिए जहां कसाफत और खमीदगी लामहदूद थीं, यानी सिंगुलैरिटी। ये वो जगह है जहां हमारी फिजिक्स के जाने पहचाने कवानीन काम करना छोड़ देते हैं। तो खुलासा ये कि कायनात फैल रही है, इसका एक आगाज था बिग बैंग, और ये मुशाहिदे और नजरिए के मिलाप से पता चला। बिल्कुल, ये दरियाफ्त वाकई इनकलाबी थी। इसने बताया कि वक्त का भी एक आगाज था। हॉकिंग इस बाब में यही दिखाते हैं कि कैसे मुशाहिदा और नजरिया मिलकर कायनात के बारे में हमारी समझ को आगे बढ़ाते हैं। जी, ये साइंस का तरीकाकार है, एक दूसरे को चैलेंज करना और बेहतर बनाना। लेकिन एक सवाल फिर भी रह जाता है, अगर कायनात बिग बैंग सिंगुलैरिटी से शुरू हुई जहां हमारे कवानीन काम नहीं करते, तो क्या हम कभी जान सकेंगे कि उस शुरू से पहले क्या था, या ये सवाल ही बेमाना है?
یہ وہ گہرے سوالات ہیں جو ہمیں مزید تحقیق پر اکساتے ہیں، اور اگلی بار ہم اور بھی عجیب و غریب چیزوں کی دنیا میں قدم رکھیں گے، بلیک ہولز اور کوانٹم میکینکس، جہاں ہماری سمجھ کو مزید چیلنجز درپیش ہوں گے۔ جی، کائنات پھیل رہی ہے اور ہماری اسے سمجھنے کی جستجو بھی جاری ہے۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے کائنات کو عمومی اضافیت کے بہت بڑے کینوس پر دیکھا تھا، یاد ہے؟ گیلیکسیاں، فاصلے، زمان و مکان کا وہ عجیب سا تانا بانا۔ جی بالکل، وہ ایک وسیع نظر تھی۔ آج ہم اسٹیون ہاکنگ کی کتاب کے چوتھے باب میں جا رہے ہیں، عدم یقین کا اصول۔ تو اب بہت بڑی چیزوں سے ہٹ کر بہت ہی چھوٹی چیزوں کی بات ہوگی۔ بالکل، کوانٹم میکینکس کی دنیا یہ بہت ہی عجیب اور دلچسپ ہے۔ اچھا، تو شروع کرتے ہیں۔ 19ویں صدی میں ایک سائنسدان تھے، لاپلس۔ ان کا خیال تھا کہ کائنات ایک مشین کی طرح ہے۔ جی ہاں، ان کا نظریہ تھا سائنسی جبریت کا، مطلب اگر آپ کو ایک لمحے میں کائنات کی ہر چیز کی پوزیشن اور رفتار معلوم ہو جائے تو آپ مستقبل میں ہونے والی ہر چیز بتا سکتے ہیں، جیسے نیوٹن کے قوانین سے سیاروں کی چال پتہ چلتی ہے۔ بالکل، یہی سوچ تھی کہ کائنات مکمل طور پر پریڈکٹیبل ہے، اور یہ خیال کافی عرصے تک سائنس میں غالب رہا۔ لیکن پھر کوئی مسئلہ آیا۔ ہاں، ایک بڑا مسئلہ۔ کلاسیکی فزکس کے حساب سے جو گرم چیزیں ہوتی ہیں جیسے ستارے، جی، انہیں تو لامحدود شرح سے توانائی خارج کرنی چاہیے تھی، خاص طور پر زیادہ فریکوینسی پر۔ لامحدود توانائی؟ یہ تو عجیب بات ہے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ بالکل نہیں ہوتا، اسے ریلے جینز قانون کی ناکامی کہتے ہیں۔ یہاں آ کر کلاسیکی فزکس پھنس گئی۔ تو پھر اس کا حل کیسے نکلا؟ 1900 میں میکس پلانک نے ایک بالکل نیا انقلابی قسم کا خیال پیش کیا۔ کیا خیال تھا وہ؟ انہوں نے کہا کہ توانائی جیسے روشنی وہ مسلسل لہروں کی طرح نہیں نکلتی، تو پھر کیسے؟ بلکہ توانائی کے چھوٹے چھوٹے الگ الگ پیکٹوں میں خارج ہوتی ہیں۔ انہوں نے ان پیکٹوں کو کوانٹا کا نام دیا۔ کوانٹا یعنی توانائی ٹکڑوں میں آتی ہے؟ جی، اور ہر کوانٹم کی توانائی اس کی فریکوینسی پر منحصر ہوتی ہے۔ جتنی زیادہ فریکوینسی اتنی زیادہ توانائی۔ اس سے وہ لامحدود توانائی والا مسئلہ حل ہو گیا، کیونکہ زیادہ فریکوینسی والے کوانٹا کم تعداد میں خارج ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ تو واقعی بہت بڑا شفٹ تھا۔ لیکن اس کا لپلاس کی جبریت سے کیا تعلق بنا؟ وہ تو مستقبل بتانے والی بات تھی۔ تعلق بہت گہرا تھا، لیکن اسے پوری طرح سمجھنے میں مزید 25-26 سال لگے۔ 1926 میں ورنر ہائزنبرگ آئے۔ ہائزنبرگ، انہوں نے کیا پیش کیا؟ وہی عدم یقین کا اصول؟ جی ہاں، ان کا مشہور عدم یقین کا اصول۔ اس نے جبریت کی بنیادیں ہی ہلا دیں۔ یہ اصول ہے کیا اصل میں، اور یہ اتنا اہم کیوں سمجھا جاتا ہے؟ دیکھیں، اصول یہ کہتا ہے کہ آپ کسی بھی ذرے کی پوزیشن اور اس کی رفتار، ان دونوں چیزوں کو بے وقت مکمل درستی سے نہیں ناپ سکتے۔ دونوں کو ایک ساتھ نہیں ناپ سکتے؟ کیوں؟ کسی ذرے کو دیکھنے یا اس کی پوزیشن معلوم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ ہمیں اس پر روشنی ڈالنی پڑتی ہے نا؟ ہاں، روشنی یا کوئی اور لہر۔ بالکل۔ اب اگر آپ پوزیشن بہت زیادہ درستی سے معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کم طول موج یعنی شارٹ ویو لینتھ والی روشنی استعمال کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اور پلانک کے نظریے کے مطابق کم طول موج کا مطلب ہے زیادہ توانائی والا کوانٹم۔ تو زیادہ توانائی والا کوانٹم استعمال کرنا پڑے گا۔ اور یہی بات دلچسپ ہو جاتی ہے، جب وہ زیادہ توانائی والا کوانٹم ذرے سے ٹکرائے گا تو وہ اس کی رفتار کو دھکا دے کر بدل دے گا، غیر متوقع طور پر۔ اچھا، یعنی آپ پوزیشن صحیح معلوم کرنے کی کوشش کریں گے تو رفتار خراب ہو جائے گی۔ بالکل، پوزیشن جتنی زیادہ درستی سے ناپیں گے رفتار اتنی ہی غیر یقینی ہو جائے گی، اور اگر رفتار کو زیادہ درستی سے ناپنے کی کوشش کریں گے تو پوزیشن غیر یقینی ہو جائے گی۔ تو یہ ہمارے ناپنے کے طریقے کی خرابی نہیں ہے؟ نہیں، یہی تو اصل نقطہ ہے۔ یہ ہمارے آلات کی کوئی کمی نہیں، یہ کائنات کی ایک بنیادی خاصیت ہے۔ فطرت نے ہی ایک حد لگا دی ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ لاپلاس کا وہ خواب کہ ہم کائنات کی حالت جان کر مستقبل بتا سکتے ہیں، وہ خواب ہی رہا۔ اگر ہم کائنات کی موجودہ حالت کو ہی مکمل درستی سے نہیں جان سکتے تو مستقبل کی بالکل ٹھیک پیش گوئی کیسے کریں گے؟ صحیح، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ جی، اسی دریافت نے پھر ہائزنبرگ، شروڈنگر، ڈیراک جیسے لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ فزکس کا ایک بالکل نیا نظریہ بنائیں، جسے کوانٹم میکینکس کہتے ہیں۔ بالکل، کوانٹم میکینکس۔ اس میں ذرات کی کوئی ایک متعین پوزیشن یا رفتار نہیں ہوتی۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک کوانٹم حالت ہوتی ہے جو کہ تمام ممکنہ پوزیشنز اور رفتاروں کا ایک طرح کا امکاناتی مجموعہ ہے۔
ये थियरी आपको ये नहीं बताती कि नतीजा क्या होगा, बल्कि ये बताती है कि मुख्तलिफ मुमकिना नताइज के इम्कानात क्या हैं। यानी साइंस में इत्तेफाक या रैंडमनेस का आंसर आ गया। एक नागुजीर उनसुर, लाजमी। तभी आइंस्टाइन ने कहा था कि खुदा पांसे नहीं खेलता, उन्हें ये बेतरतीबी पसंद नहीं आई। जी, उन्हें ये ख्याल बिल्कुल पसंद नहीं था कि कायनात की बुनियाद में रैंडमनेस हो। लेकिन ज्यादातर साइंसदानों ने क्वांटम मैकेनिक्स को कबूल कर लिया। क्यों? क्योंकि ये तजर्बात से बिल्कुल ठीक मुताबिकत रखती थी। आज हमारी सारी जदीद टेक्नोलॉजी, ट्रांजिस्टर, कंप्यूटर, लेजर, यहां तक कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी की गहरी समझ, वो सब क्वांटम मैकेनिक्स पर मबनी है। जी हाँ, इन सब की बुनियाद यही है। अच्छा, आपने लहरों और जर्रात की बात की। क्वांटम मैकेनिक्स में उनका क्या किरदार है? ये लहर, जर्रा, सुनवियत क्या चीज है? ये भी एक बहुत ही अजीब तस्वुर है। देखें, प्लांक ने दिखाया कि लहरें जैसे रोशनी, वो जर्रात यानी क्वांटा की तरह बर्ताव कर सकती हैं। ठीक है। और फिर हाइजेनबर्ग और दूसरों ने दिखाया कि जर्रात जैसे इलेक्ट्रॉन वो लहरों की तरह बर्ताव करते हैं। मतलब उनकी कोई एक पक्की जगह नहीं होती, वो फैले हुए होते हैं। लहरें जर्रात की तरह और जर्रात लहरों की तरह, ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है। इसकी कोई मिसाल है? सबसे मशहूर मिसाल वो 2 शगाफों वाला तजुर्बा है, 2 स्लिट एक्सपेरिमेंट। हाँ, सुना है उसके बारे में। अगर आप रोशनी की लहर को 2 बारीक सुराखों या शिगाफों से गुजारें, तो दूसरी तरफ स्क्रीन पर आपको रोशन और तारीक पट्टियां नजर आएंगी। इसे मुदाखलत या इंटरफेरेंस कहते हैं। ये लहरों की खासियत है। ठीक है, ये तो समझ आता है। हैरत की बात यह है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन जैसे जर्रात को एक एक करके भी उन शगाफों से गुजारें, तो क्या होता है? तब भी स्क्रीन पर वही लहरों जैसा मुदाखलत का नमूना बनता है, वही रोशन और तारीक पट्टियां। क्या मतलब? एक अकेला इलेक्ट्रॉन भी वो कैसे मुदाखलत कर सकता है? क्या वो खुद से टकरा रहा है? ऐसा लगता है कि जैसे हर इलेक्ट्रॉन एक लहर की तरह फैलकर दोनों शगाफों से गुजर रहा है और फिर खुद अपने साथ ही मुदाखलत कर रहा है। ये तो नाकाबिले यकीन लगता है। क्वांटम दुनिया ऐसी नाकाबिले यकीन है। और ये लहर जरा सुनवियत, एटम की साख्त समझने में भी बहुत अहम साबित हुई। पुराना मॉडल जो था कि इलेक्ट्रॉन सियारों की तरह न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं, वो काम नहीं करता था। नहीं, वो नाकाम हो गया था। नील्स बोहर ने कुछ मखसूस मुदारों का नजरिया दिया, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स ने उसकी असल वजह बताई। वो क्या? कि इलेक्ट्रॉन को लहर समझा जाए और सिर्फ वही मुदार मुमकिन है जिनकी लंबाई यानी सर्कमफ्रेंस इलेक्ट्रॉन की लहर की तूले मौज का पूरा अदद हो। अच्छा। का जाने के लिए हर मुमकिन रास्ता इख्तियार करता है बेवक्त, और इन तमाम रास्तों की लहरें मिलकर वो नतीजा देती हैं जो हम देखते हैं। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स छोटी, बहुत छोटी चीजों की दुनिया पर हुकूमत करती है। जी हाँ, उसूलन ये हमारे इर्द गिर्द की तकरीबन हर चीज की वजाहत कर सकती है, सिवाय कशिश सकल और कायनात की बड़े पैमाने की साख्त के। वहां उमूमी इजाफियत का राज है। और इन दोनों में क्या मसला है? मसला यह है कि उमूमी इजाफियत एक क्लासिकी नजरिया है। इसमें अदम यकीन का असूल शामिल नहीं है। और दिलचस्प बात यह है कि उमूमी इजाफियत खुद अपनी नाकामी की पेशगोई करती है। कैसे? ब्लैक होल्स के मरकज में और बिग बैंग के आगाज में जहां कसाफत लामहदूद हो जाती है, उन जगहों पर कशिश सकल इतनी शदीद होती है कि क्वांटम असरात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारे पास अभी तक कोई ऐसी थ्योरी नहीं जो इन दोनों यानी क्वांटम मैकेनिक्स और उमूमी इजाफियत को इकट्ठा कर सके। तो अभी तक एक मुकम्मल तस्वीर नहीं है हमारे पास? नहीं, अभी तक नहीं। यही जदीद फिजिक्स का सबसे बड़ा चैलेंज है। तो इस बाब से हमने क्या सीखा? खुलासा क्या है? खुलासा ये है कि कायनात अपनी बुनियाद में इतनी जबरी या प्रिडिक्टेबल नहीं जितना हम समझते थे। क्वांटम सतह पर यकीन की जगह इम्कानात ले लेते हैं। हकीकत खुद स्टैटिस्टिकल पैटर्न्स का एक मामला बन जाती है। और हॉकिंग अदम यकीन के उसूल के जरिए ये वाज़े करते हैं कि पेशगोई की हदें हैं, और ये हदें हमारे आलात की वजह से नहीं बल्कि खुद फितरत की बनावट की वजह से हैं। बिल्कुल। इसके बहुत गहरे असरात हैं हमारी सोच पर, सबब और असर के बारे में, आजाद मर्जी के बारे में, वक्त की नौयत के बारे में। ये तो वाकई गहरी बातें हैं। अगली बार हम देखेंगे कि ये क्वांटम तसव्वुरात जब शदीद कशिश सकल से मिलते हैं तो क्या होता है।
हम कायनात के सबसे पुरस्कार जश्मों में से एक यानी ब्लैक होल्स की दुनिया में कदम रखेंगे। ब्लैक होल्स, वो तो बहुत दिलचस्प होगा। यकीनन, वो सिर्फ जगह को नहीं, हमारे तखय्युल को भी मोड़ देते हैं। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सोच, अगर हर जर्रा बेवक्त कई रास्ते इख्तियार कर सकता है, जैसा कि 2 शगाफों वाले तजुर्बे से लगता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हकीकत की कई मुतवाजी शाखें मौजूद हैं और हम सिर्फ उनमें से एक का तजुर्बा कर पाते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इस पर गौर कीजिएगा। पिछली गुफ्तगू में हमने बड़ी चीजों पर नजर डाली थी, इजाफियत, फैलती हुई कायनात। आज जरा गहराई में उतरते हैं, बिल्कुल बुनियादी सतह पर, कि ये कायनात आखिर बनी किस चीज से है। जी बिल्कुल, और इस खोज में हमारा साथ देगा स्टीवन हॉकिंग का बाब नंबर 5, इब्तिदाई ज़र्रात और फितरत की कुव्वतें। अच्छा, ये हमें बताता है कि मादे के बुनियादी अज्जा क्या हैं, जैसे क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन्स, और वो कौन सी कुव्वतें हैं जो उन्हें आपस में जोड़ती हैं। तो मतलब ये समझना कि ये नन्ही मिन्नी चीजें मिलकर कैसे सितारे, सैयारे और हम खुद कैसे बन गए। बिल्कुल, सबसे छोटी चीजें कैसे सबसे बड़ी चीजों की बुनियाद बनती हैं। आइए देखते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? पहले तो लोग समझते थे मिट्टी, पानी, आग, हवा, है ना, अरस्तु वगैरह। जी हाँ, और फिर ख्याल आया एटम का, कि मादा छोटे नाकाबिले तकसीम जर्रों से बना है। लेकिन वो ख्याल भी पूरी तरह सही नहीं निकला, सही, क्योंकि फिर पता चला कि एटम के अंदर भी चीजें हैं। पहले इलेक्ट्रॉन मिला, फिर रदरफोर्ड ने बताया कि एक मरकजा भी है। जी, और फिर पता चला कि मरकजे में प्रोटॉन है, और कुछ अरसे बाद न्यूट्रॉन भी दरियाफ्त हो गए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी, वो भी बुनियादी नहीं है। नहीं, यही तो सबसे दिलचस्प मोड़ था। मरे गेलमैन ने नजरिया पेश किया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन खुद भी और छोटे ज़रात से बने हैं, जिन्हें उन्होंने क्वार्क्स का नाम दिया। क्वार्क्स, ये नाम कहाँ से आया? ये उन्होंने जेम्स जॉइस की एक किताब से लिया था, एक अजीब सी लाइन से। खैर, अहम बात यह है कि आम मादा बनाने के लिए 2 किस्म के क्वार्क्स काफी हैं, अप और डाउन। अच्छा, अप और डाउन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनसे कैसे बनते हैं? प्रोटॉन में 2 अप और 1 डाउन क्वार्क होता है, और न्यूट्रॉन में 2 डाउन और 1 अप। समझ गया। और इन जर्रात की एक और खासियत का जिक्र होता है, स्पिन। क्या ये लट्टू की तरह घूमते हैं? नहीं, ये वो वाला घूमना नहीं है। ये क्वांटम मैकेनिक्स की एक अंदरूनी खासियत है। यूं समझें कि जर्रा मुख्तलिफ समतों से कैसा दिखता है। ओह, और जो मादे के जर्रात है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन और क्वार्क्स, इनकी स्पिन होती है हाफ। इसका मतलब है कि उन्हें पूरा एक चक्कर नहीं, बल्कि 2 चक्कर, 720 डिग्री। जी हाँ, 2 पूरे चक्कर घुमाने पर वो वैसे ही नजर आते हैं जैसे शुरू में थे। अजीब बात है ना? वाकई बहुत अजीब है। इस स्पिन का कोई अमली नतीजा भी है? बहुत अहम। स्पिन हाफ वाले जर्रात एक उसूल पर अमल करते हैं, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आसान लफ्जों में 2 एक जैसे इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पर एक ही हालत में नहीं रह सकते। अच्छा, इसी उसूल की वजह से मादा ठोस है, वरना एटम एक दूसरे में धंस जाते। तो ये उसूल मादे को साख्त देता है। जबरदस्त। अच्छा, एक और चीज, जिद मादा, एंटी मैटर, ये क्या बला है? ये भी बिल्कुल हकीकी है। पॉल डिराक ने 1928 में इसकी पेशंगोई की थी, जब वो क्वांटम मैकेनिक्स और आइंस्टाइन की खुसूसी इजाफियत को मिलाने की कोशिश कर रहे थे। नजरिया ये है कि हर जर्रे का एक जिद जर्रा यानी एंटी पार्टिकल होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन का एंटी इलेक्ट्रॉन, जिसे पॉजिट्रॉन कहते हैं। और अगर ये मिल जाए तो दोनों फना हो जाते हैं और खालिस तवनाई यानी फोटॉन पैदा होते हैं। लेकिन कायनात में तो ज्यादातर मादा ही नजर आता है, जिद मादा तो हाँ ही दिखता। यही तो बड़ा सवाल है कि शुरू में अगर बराबर बने थे तो आज ये फर्क क्यों है? इस पर हम आखिर में बात करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास मादे के बुनियादी जर्रात हो गए, क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन्स, जो लेप्टॉन कहलाते हैं। अब इन्हें जोड़ने वाली कुव्वतें कौन सी हैं? जी, बुनियादी तौर पर 4 कुव्वतें मानी जाती हैं। और ये कुव्वतें काम कैसे करती हैं? जर्रात आपस में कुछ खास कुव्वत बरदार या पैगाम रसां जर्रात का तबादला करते हैं। अच्छा, जैसे डाकिया खत लाता है? कुछ वैसा ही समझ लें। तो पहली कुव्वत है कशिशे सकिल, सबसे जानी पहचानी लेकिन सबसे कमजोर भी।
ये हर चीज पर असर करती है। इसका पैगाम रसां ग्रेविटॉन माना जाता है, अगरचे अभी मिला नहीं। ठीक है, दूसरी है बर्क मगनातीसियत। ये चार्ज वाले जर्रात पर असर करती है। एटमों को जोड़कर मॉलिक्यूल बनाना, रोशनी, बिजली, मगनातीसियत, ये सब इसी के करिश्मे हैं। इसका पैगाम रसां है फोटॉन यानी रोशनी का जर्रा। ठीक। और बाकी 2 न्यूक्लियर कुव्वतें? जी, एक है मजबूत न्यूक्लियाई कुव्वत। ये क्वार्क्स को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर बांध कर रखती है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एटम के मरकजे में। ये बहुत ताकतवर है, मगर इसकी पहुंच बहुत ही कम है। इसका पैगाम रसा है ग्लूऑन, जैसे गोंद? बिल्कुल। और चौथी है कमजोर न्यूक्लियाई कुव्वत। ये कुछ किस्म की तापकारी रेडियो एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार है। ये भी बहुत कम फासले पर काम करती है। तो ये 4 कुव्वतें हो गईं। क्या ये हमेशा से अलग अलग थीं? नहीं, साइंसदानों का ख्याल है कि शायद नहीं। अब्दुस सलाम और स्टीवन विनबर्ग ने दिखाया कि बहुत ज्यादा तवानाई पर कमजोर न्यूक्लियाई कुव्वत और बर्कनातीसियत एक ही कुव्वत बन जाती हैं, जिसे इलेक्ट्रोवीक कुव्वत कहते हैं। ओह वाह! तो क्या ऐसा मुमकिन है कि ये चारों कुव्वतें असल में एक ही सुपर फोर्स के मुख्तलिफ पहलुओं हों? यही तो सबसे बड़ा ख्वाब है फिजिक्स का, एक अजीम मुत्तहिदा नजरिया या ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी GUT बनाना, जो मजबूत, कमजोर और इलेक्ट्रोवीक कुव्वत को यकजा कर दे। और क्या ऐसे नजरियात मौजूद हैं? जी हाँ, कई हैं। ये नजरियात कुछ दिलचस्प पेशगोइयां भी करते हैं, मसलन ये कि प्रोटॉन भी शायद हमेशा कायम नहीं रहते, अरबों खरबों साल में एक आध टूट सकता है। क्या प्रोटॉन भी टूट सकता है? नजरियाती तौर पर मुमकिन है। अभी तक तजुर्बाती तौर पर ऐसा देखा नहीं गया, लेकिन कोशिशें जारी हैं। और क्या ये GUTs वो मादे और जिद मादे वाली पहेली सुलझा सकते हैं? बिल्कुल, ये एक मुमकिना वजाहत पेश करते हैं। इन नजरियात के मुताबिक कायनात के बिल्कुल शुरू में जब बेइंतहा गर्मी और तवानाई थी, तो कबियत के कवानीन मादे और जिद मादे के लिए बिल्कुल एक जैसे नहीं थे। एक हल्का सा फर्क था। अच्छा, कैसा फर्क? उसे CP वायोलेशन कहते हैं। मतलब कुछ तामलात, इंटरैक्शंस मादे के लिए जिस तरह होते थे, जिद मादे के लिए थोड़े मुख्तलिफ थे। और जब कायनात ठंडी हुई और फैली, तो उस मामूली से फर्क की वजह से जिद मादा फना हो गया, लेकिन थोड़ा सा इजाफी मादा बच गया। और उसी बचे हुए मादे से आज सब कुछ बना है? जी हाँ। तो एक तरह से हमारा वजूद ही शायद उन अजीम मुत्तहिदा नजरियात का बायवास्ता सबूत है। कमाल है। तो खुलासा ये हुआ कि ये सारी कायनात अपनी तमाम तर वुसअत और पेचीदगी के बावजूद शायद चंद बुनियादी जर्रात, 4 कुव्वतों और कुछ बहुत ही बुनियादी और खूबसूरत उसूलों पर चल रही है। बिल्कुल। स्टीफन हॉकिंग हमें यही दिखाते हैं कि फितरत की गहराई में एक हैरत अंगेज सादगी और तवाज़ुन छुपा हुआ है, और इन कवानीन को समझकर हम शायद हर शय के नजरिए के करीब पहुंच रहे हैं। ये सफर तो वाकई बहुत दिलचस्प है। अगली बार हम कहाँ जाएंगे? अगली बार हम उन्हीं जर्रात और कुव्वतों को कायनात की सबसे पुरस्कार जगहों में देखेंगे, ब्लैक होल्स में, जहां हमारे जाने पहचाने कवानीन शायद काम करना छोड़ देते हैं। सुनने में ही सनसनीखेज लग रहा है। और आज के लिए एक आखिरी ख्याल छोड़ जाती हूँ। क्या ये मुमकिन है कि कायनात के आगाज में वो जो जरा सी बेकायदगी थी, वो CP वायलेशन, अगर वो ना होती तो आज न हम होते, न ये कहकशाएं, कुछ भी ना होता, बस खाली तवानाई होती। इस पर सोचिएगा। तो आज हम बाब 6 का जायजा ले रहे हैं। ये बाब कायनात के सबसे पुरस्कार और ताकतवर मज़ाहिर में से एक पर है, यानी ब्लैक होल्स। जी बिल्कुल। पहले हमने मादे के बुनियादी अज्जा और कुव्वतों को समझा, अब हम कायनात की इन इंतहाओं की तरफ आ गए हैं, जहां कशिश सकल का राज है। हाँ, और ये बाब बताता है कि सितारे कैसे, मतलब जब उनका ईंधन खत्म हो जाता है तो वो अपनी ही कशिश के बोझ तले दब जाते हैं और इन नाकाबिले यकीन हद तक कसीफ चीजों में बदल जाते हैं। इतने कसीफ के रोशनी भी नहीं निकल सकती। ये ख्याल तो पुराना था, है ना? लेकिन ये नाम ब्लैक होल, जी, ये नाम जॉन व्हीलर ने 1969 में दिया। इससे पहले इसे कोलैप्स्ड स्टार या कुछ और कहा जाता था। अच्छा। और अहम बात यह है, देखें कि ब्लैक होल सिर्फ तबाही नहीं लाते, ये बाब उनकी तख्लीक, इवेंट होराइजन यानी वाकयाती उफुक का तस्वर, वाकयाती उफुक,
جی، اور خاص طور پر یہ کہ بلیک ہولز ہمیں وقت، خلا اور کوانٹم تھیوری کے بارے میں کیا سکھا سکتے ہیں اس پر روشنی ڈالتا ہے۔ یہ سمجھنا کہ روشنی بھی کشش ثقل سے متاثر ہوتی ہے، یہ تو آئنسٹائن کے بعد ہی ممکن ہوا، ٹھیک ہے؟ بالکل، جنرل ریلیٹیوٹی نے ہی اس کی بنیاد رکھی کہ بھاری اجسام روشنی کا راستہ موڑ سکتے ہیں، اور بلیک ہول تو مطلب انتہا ہے۔ تو یہ باب ایک طرح سے نظریاتی فزکس سے ہٹ کر حقیقی کائناتی عجائبات کی طرف لے جاتا ہے، جہاں ہمارے جانے پہچانے قوانین شاید جواب دے جاتے ہیں۔ جی، جہاں کشش ثقل غالب آ جاتی ہے۔ ستارے عام طور پر تو نیوکلیئر فیوژن کی گرمی سے اپنی کشش کو بیلنس رکھتے ہیں۔ ہاں، لیکن جب ایندھن ختم، پھر کیا ہوتا ہے؟ یہیں پر چندر شیکھر کی دریافت بہت اہم ہے۔ سن 1928 میں انہوں نے حساب لگایا تھا اچھا، جی کہ اگر ایندھن ختم ہونے والے ستارے کی کمیت یعنی میس ہمارے سورج سے تقریباً 1.5 گنا زیادہ ہو، جسے چندر شیکھر لمٹ کہتے ہیں، 1.5 گنا، اوکے، تو وہ ستارہ اپنی ہی کشش ثقل کے سامنے ٹک نہیں پائے گا، وہ لازماً سکڑے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کم کمیت والے ستارے بلیک ہول نہیں بنتے؟ نہیں، وہ عموماً وائٹ ڈوارف یا نیوٹران ستارے بن جاتے ہیں۔ وہاں مادہ اتنا دب جاتا ہے کہ الیکٹران یا نیوٹران ایک دوسرے کو مزید دبنے نہیں دیتے۔ وہ پولی ایکسکلوژن پرنسپل کی وجہ سے؟ بالکل، وہ ایک کوانٹم مکینیکل رکاوٹ ہے۔ لیکن اگر ستارہ بہت بڑا ہو تو کشش ثقل اس رکاوٹ پر بھی غالب آ جاتی ہے اور ستارہ بس سکڑتا ہی چلا جاتا ہے۔ اور پھر اوپن ہائمر نے دکھایا 1939 میں کہ اس سکڑاؤ کے دوران ستارے کی سطح پر کشش اتنی بڑھ جاتی کہ روشنی بھی باہر نہیں آ سکتی۔ جی، روشنی کے راستے اندر کی طرف مڑ جاتے ہیں۔ یہی وہ سرحد ہے، وہ ناقابل واپسی حد جسے ایونٹ ہرائزن کہتے ہیں۔ بلیک ہول کا آغاز، یہ تصور ہی مطلب دماغ گھما دیتا ہے۔ واقعی، اور یہاں وقت کا معاملہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ وقت کا؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، ایونٹ ہرائزن سے باہر اگر کوئی دیکھ رہا ہو تو اسے ستارے سے آتی روشنی آہستہ آہستہ مدھم اور سرخ ہوتی دکھے گی، جیسے وقت سلو ہو رہا ہو، یہاں تک کہ وہ بالکل غائب ہو جائے۔ اچھا، لیکن اگر کوئی خلا نورد خود اس میں گر رہا ہو تو اسے شاید ایونٹ ہرائزن پار کرنے کا پتہ بھی نہ چلے، حالانکہ اس کے لیے وقت بالکل مختلف طریقے سے گزر رہا ہوگا۔ کمال ہے، یہ جنرل ریلیٹیوٹی کا ہی ایک نتیجہ ہے؟ جی ہاں، یہ وقت اور کشش ثقل کے تعلق کا ایک حیران کن پہلو ہے۔ تو باب 6 یہ واضح کرتا ہے کہ بلیک ہولز جو کبھی صرف ایک تھیری سمجھے جاتے تھے، آج جدید فلکی طبیعت کے لیے اور ہاکنگ کے اپنے کام کے لیے مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ بالکل، یہ صرف چیزیں نگلتے نہیں ہیں بلکہ کائنات کے راز بھی کھولتے ہیں۔ یہاں وہ بلیک ہول کا کوئی بال نہیں ہوتا والا نظریہ بھی آتا ہے نا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک ستارہ بلیک ہول میں بدلتا ہے تو اس کی ساری پیچیدہ تاریخ، اس کی بناوٹ، سب کچھ مٹ جاتا ہے۔ آخر میں بلیک ہول کی پہچان صرف 3 چیزوں سے ہوتی ہے: اس کی کمیت، اس کا چارج اور اس کی گردش یعنی سپن۔ بس یہ 3 چیزیں؟ جی، گویا کائنات اتنی پیچیدہ شے کو حیران کن حد تک سادہ بنا دیتی ہے۔ لیکن یہیں ایک بڑا سوال بھی اٹھتا ہے۔ وہ کیا؟ معلومات کا۔ وہ معلومات جو بلیک ہول میں گرتی ہیں، ان کا کیا بنتا ہے؟ کیا وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں؟ یہ جنرل ریلیٹیوٹی اور کوانٹم تھیوری کے درمیان ایک بڑا ٹکراؤ ہے۔ اور جیسا کہ بعد کے ابواب میں آئے گا، شاید یہ مکمل طور پر بلیک بھی نہیں ہے، یہ تابکاری بھی خارج کر سکتے ہیں۔ بالکل، اور بالآخر شاید بخارات بن کر اڑ بھی جائیں، جسے ہاکنگ ریڈیشن کہتے ہیں۔ یہ خود ایک انقلابی خیال ہے۔ صحیح۔ تو آگے بڑھتے ہوئے ہم ان تضادات اور پہیلیوں میں مزید گہرائی میں جائیں گے جو بلیک ہولز ہمارے سامنے رکھتے ہیں، جیسے وہ کائناتی سینسرشپ والی بات کہ کیا سنگولیرٹی ہمیشہ ایونٹ ہورائزن کے پیچھے چھپی رہتی ہے؟ جی بالکل، کیا قدرت ہمیں لامتناہی کثافت کو براہ راست دیکھنے سے روکتی ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہمیں علم کی بالکل سرحدوں تک لے جاتے ہیں۔ یہ واقعی غور طلب بات ہے کہ ایسا لگتا ہے کائنات اپنے سب سے بڑے راز اسی تاریکی میں چھپاتی ہے۔ شاید اسی تاریکی کو سمجھنے میں ہی روشنی چھپی ہو۔ پچھلی بار ہم نے بات کی تھی کہ بلیک ہولز تو جیسے کائناتی قید خانے ہیں، ایسی جگہیں جہاں سے روشنی بھی نہیں نکل سکتی۔ جی بالکل، یہی عام تصور تھا۔ لیکن آج ہم باب 7 بلیک ہولز اتنے کالے نہیں پر بات کر رہے ہیں۔ یہاں اسٹیون ہاکنگ نے
सब कुछ बदल दिया। हाँ, उन्होंने एक बिल्कुल ही नई इनकलाबी बात की थी। हॉकिंग रेडिएशन का नजरिया है ना? जी, कि ब्लैक होल्स क्वांटम असरात की वजह से असल में तवानाई खारिज कर सकते हैं, वो बिल्कुल काले नहीं हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि वो हमेशा कायम नहीं रहते? बिल्कुल, वो कमियत खो सकते हैं, मतलब वो सिकुड़ सकते हैं और आखिरकार शायद खत्म भी हो सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात थी। और इसने यूं समझें कि कशिश सकल यानी जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को पहली बार जोड़ा। जी, यही उसकी सबसे बड़ी अहमियत थी। फिजिक्स के दो बड़े सुतून एक साथ। तो ये ख्याल आया कैसे? सुना है 1970 में उन्होंने इवेंट होराइजन पर कुछ काम किया था। हाँ, उन्होंने दरियाफ्त किया कि ब्लैक होल का इवेंट होराइजन, वो बाउंड्री जहां से फरार मुमकिन नहीं, उसका रकबा कभी कम नहीं हो सकता। सिर्फ बढ़ सकता है जब कोई चीज अंदर गिरे? जी, और ये बढ़ने वाली खासियत बिल्कुल वैसी ही थी जैसी थर्मोडायनामिक्स के दूसरे कानून में एंट्रोपी की होती है। एंट्रोपी यानी बेतरतीबी? वो भी हमेशा बढ़ती है। सही। तो ये मुशाबहत बहुत गहरी थी। फिर जैकब बैकनस्टाइन ने कहा कि शायद ये रकबा ही एंट्रोपी है। जी, उन्होंने ये तजवीज पेश की, लेकिन इससे एक मसला खड़ा हो गया। मसला? क्या मसला? मसला ये कि अगर एंट्रोपी है तो दर्जा हरारत भी होना चाहिए, और अगर दर्जा हरारत है तो जिस्म ताबकारी खारिज करता है। ओ, लेकिन ब्लैक होल से तो कुछ निकल नहीं सकता, ये तो उसकी तारीफ के ही खिलाफ था। बिल्कुल, हॉकिंग खुद भी शुरू में इस ख्याल के सख्त मुखालिफ थे। उन्हें ये बात बिल्कुल गलत लगी। तो फिर वो खुद इस नतीजे पर कैसे पहुंचे? इसमें सोवियत साइंसदानों ज़ेल्कोविच और स्टारोबिन्स्की के काम का भी किरदार था। और फिर हॉकिंग ने क्वांटम मैकेनिक्स को इस्तेमाल किया। क्वांटम मैकेनिक्स? यहाँ कैसे? देखें, क्वांटम नजरिए के मुताबिक खाली खला भी बिल्कुल खाली नहीं होता। उसमें मजाजी जर्रात के जोड़े, पार्टिकल एंटी पार्टिकल, हर वक्त बनते और फना होते रहते हैं। अच्छा, ये तो अजीब बात है। जी, तो हॉकिंग ने हिसाब लगाया कि इवेंट होराइजन के बिल्कुल करीब क्या होता है। वहां इन मजाजी जोड़ों में से एक मनफी तवानाई वाला जर्रा ब्लैक होल में गिर सकता है, और दूसरा? उसका साथी मुस्बत तवानाई वाला, वो बाहर खला में फरार हो सकता है। तो जो जर्रा अंदर गिरा उसकी मनफी तवानाई ब्लैक होल की कुल तवानाई कम कर देगी, यानी उसकी कमियत कम हो जाएगी। बिल्कुल सही। और जो बाहर निकला वो हमें ऐसा लगेगा जैसे ब्लैक होल से तापकारी खारिज हो रही है। कमाल है, यानी तापकारी ब्लैक होल के अंदर से नहीं बल्कि उसके किनारे से क्वांटम असरात की वजह से आ रही है। एन मुताबिक। और उसने वो बैकनस्टाइन वाला एंट्रोपी का मसला भी हल कर दिया। जो तापकारी निकल रही है उसकी अपनी एंट्रोपी होती है, जो ब्लैक होल के रुतबे में कमी की तलाफी कर देती है। वाह, तो ये एक तरह से थर्मोडायनामिक्स का कानून भी बच गया। जी बिल्कुल। तो फिर E=mc² के मुताबिक तवानाई के इखराज का मतलब है किमियत में कमी, यानी ब्लैक होल वक्त के साथ छोटा होता जाएगा। हाँ, और जैसे जैसे वो छोटा होता है उसका दर्जा हरारत बढ़ता जाता है और तापकारी का इखराज और तेज हो जाता है। तेज होता जाता है। तो आखिर में क्या होगा? नजरिया ये है कि आखिर में जब वो बहुत छोटा और बहुत गर्म हो जाएगा तो वो एक बड़े धमाके के साथ मुकम्मल तौर पर बुखारात बनकर उड़ जाएगा। एक धमाका? ब्लैक होल का खात्मा एक धमाके से? जी, ये एक इम्कान है। लेकिन जो बड़े ब्लैक होल्स हैं, जो सूरज से लाखों गुना बड़े हैं, उनका क्या? उनका दर्जा हरारत बहुत ही कम होता है, मुतलक सिफर से बस जरा सा ऊपर। उन्हें इस तरह बुखारात बनने में कायनात की मौजूदा उम्र से भी अरबों खरबों गुना ज्यादा वक्त लगेगा। तो वो तो अमली तौर पर हमेशा रहेंगे। हाँ, ऐसा ही लगता है। लेकिन क्या छोटे ब्लैक होल्स भी हो सकते हैं? एक दिलचस्प ख्याल है कदीमी ब्लैक होल्स का। ये वो छोटे ब्लैक होल हो सकते हैं जो शायद कायनात के बिल्कुल शुरू में बिग बैंग के फौरन बाद बने हों। अगर वो बने थे तो अब कहाँ हैं? अगर उनकी कमियत मुनासिब थी, जैसे किसी पहाड़ जितनी, तो वो शायद अब अपनी जिंदगी के आखिरी मराहिल में होंगे और शदीद एक्सरे और गामा रेज खारिज कर रहे होंगे। क्या हमने ऐसी कोई गामा रेज देखी हैं? हमने कायनाती पस मंजर में गामा रेज देखी तो है, लेकिन उनका मनबा यकीनी तौर पर ये कदीमी ब्लैक होल्स नहीं। मुशाहिदात ने उनकी तादाद पर एक हद लगा दी है, मतलब वो बहुत ज्यादा नहीं हो सकते। तो अभी तक कोई सबूत नहीं मिला? नहीं, अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं। तलाश जारी है। तो मजमूई तौर पर हॉकिंग रेडिएशन की सबसे बड़ी बात क्या है?
इसकी तारीखी अहमियत ये है कि ये जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को मिलाने वाली पहली ठोस पेशगोई थी। इसने ये तस्वुर बदल दिया कि कशिश सुक्कल का तसादुम बिल्कुल हतमी होता है। और वो जो बात थी कि ब्लैक होल में गिरने वाली मालूमात का क्या होता है, क्या वो हमेशा के लिए जाया हो जाती हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। हॉकिंग रेडिएशन से लगता है कि शायद तवानाई कीमियत वापस आ जाती है, ताबकारी की शक्ल में। तो अगर कोई खिलाबाज गिर जाए तो इसकी तवानाई वापस आ जाएगी, लेकिन वो खुद नहीं, एक अजीब किस्म की रिसाइकलिंग। हाँ, कुछ ऐसा ही। अगरचे वो मालूमात किस शक्ल में वापस आती हैं, ये अब भी बहस का मौजू है, और ये दरियाफ्त सिंगुलैरिटीज के मसले को समझने में भी मदद दे सकती है। सिंगुलैरिटीज, जहां फिजिक्स के खवानीन जवाब दे जाते हैं। जी, शायद क्वांटम असरात उन लामहदूदियतों को खत्म करते हों। तो खुलासा ये हुआ कि इस बाब ने ब्लैक होल्स को एक नई रोशनी में दिखाया। वो बिल्कुल काले और मुर्दा नहीं है। बिल्कुल, वो चमक सकते हैं, सुकड़ सकते हैं और शायद मर भी सकते हैं। वो मुतहर्रिक चीजें हैं। और इन्होंने फिजिक्स की बुनियादों को हिला दिया, क्वांटम थियोरी और कशिश शकल के मिलाप की तरफ इशारा किया। जी हाँ, ये आज भी फिजिक्स के मुकद्दस अहदाफ में से एक है। तो ब्लैक होल्स अब पहले से भी ज्यादा पुरस्रार और दिलचस्प लग रहे हैं। शायद इनमें खिला, वक्त और मालूमात के राज छुपे हों। यकीनन। अच्छा, तो ब्लैक होल्स की इस दुनिया से निकलकर अगली बार हम एक और बुनियादी सवाल की तरफ जाएंगे। कायनात कहाँ से आई और ये ऐसी क्यों है जैसी है? ये वाकई बड़े सवालात हैं। तो अगली गुफ्तगू में हम कायनात की इब्तिदा और उसकी साख्त के राजों में मजीद गहराई तक जाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। आज हम स्टीफन हॉकिंग की किताब के एक बहुत ही अहम बाब 8 पर बात कर रहे हैं, कायनात की इब्तिदा और इंजाम। जी, पिछली बार हम ब्लैक होल्स और क्वांटम असरात की गहराई में गए थे। बिल्कुल, और अब सवाल ये है कि ये सब कुछ, ये पूरी कायनात, ये आई कहाँ से और इसका मुस्तकबिल क्या है? यही सबसे बड़े सवालात हैं। ये बाब बिग बैंग थ्योरी से शुरू तो होता है, लेकिन फौरन ही इसकी जो हुदूद हैं उन्हें चैलेंज करता है। जी हाँ। मसलन, क्या वक्त हमेशा से था या वक्त की भी कोई इब्तिदा थी? और यहीं पर हॉकिंग हमें कुछ बहुत ही गैर मामूली तस्वुरात से मिलवाते हैं, जैसे ख्याली वक्त। हाँ, और बगैर सरहद की तजवीज, यानी नो बाउंड्री प्रपोजल। बिल्कुल। यहाँ आकर ना बात सिर्फ फिजिक्स की नहीं रहती, ये सीधा फलसफे के मैदान में चली जाती है। सही। क्या ऐसा मुमकिन है कि कायनात को किसी रिवायती खालिक की जरूरत ही ना हो? क्या सिर्फ कुदरती कवानीन, जो लॉ ऑफ नेचर है, वही काफी है वजूद की वजाहत के लिए? देखें, ये बहुत गहरे सवालात हैं जिन्हें हॉकिंग ने उठाया है। आइंस्टाइन की जो जनरल रिलेटिविटी थी, वो तो यही बताती थी कि स्पेस टाइम बिग बैंग पर शुरू हुआ और शायद बिग क्रंच या किसी ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी में खत्म हो जाए। मतलब एक वाज़े आगाज और एक मुमकिन अंजाम। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने क्वांटम असरात को शामिल किया, खास तौर पर वो जो ब्लैक होल्स का बुखारात बनकर उड़ जाना है ना, हॉकिंग रेडिएशन। जी, तो सवाल ये पैदा हुआ कि क्या क्वांटम मैकेनिक्स उन बिल्कुल इब्तिदाई और आखिरी नुकात को, यानी सिंगुलैरिटीज को भी खत्म कर सकती है? ओह, वो पॉइंट्स जहां हमारे फिजिक्स के कवानीन जवाब दे जाते हैं? बिल्कुल वही, जहां सब कुछ लामहदूद हो जाता है। तो क्या क्वांटम थ्योरी इन्हें हमवार कर सकती है? हॉकिंग ने वो वेटिकन वाली कॉन्फ्रेंस का वाकया भी बताया था ना? जी, बड़ा दिलचस्प वाकया है। उन्हें मशवरा दिया गया था कि बिग बैंग पर तहकीक ना करें, क्योंकि वो तो खल्कियत का लम्हा है। यानी एक तरह से मना किया गया, आप कह सकते हैं। लेकिन हॉकिंग का ख्याल तो बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो एक ऐसी कायनात का तस्वुर पेश कर रहे थे जो महदूद तो हो, फाइनाइट हो, मगर उसकी कोई सरहद ना हो, कोई किनारा ना हो। मतलब कोई इब्तिदा या इंतहा का लम्हा ही ना हो। ये समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आगे चलते हैं। गर्म बिग बैंग मॉडल क्या कहता है? जी, जो स्टैंडर्ड मॉडल है, गर्म बिग बैंग मॉडल, वो कायनात की तारीख बताता है कि ये एक इंतहाई गर्म, कसीफ हालत से शुरू हुई, फिर फैली और ठंडी होती गई। और इसी दौरान अनासिर बने? हाँ, पहले सेकंड के बाद तो ये नाकाबिले तस्वुर हद तक गर्म थी। फिर कोई 100 सेकंड बाद हीलियम जैसे हल्के अनासिर बनना शुरू हुए। और इस मॉडल का सबसे बड़ा सबूत? वो माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन CMB है, जिसकी पेशगोई गेमाऊ, अल्फर और बेथेने की थी। बिल्कुल, और जिसे बाद में दरियाफ्त भी किया गया। और फिर अरबों साल लगे
गैलेक्सियां बनने में, सितारे, सैयारे। जी हाँ, और हमारे सूरज जैसे सितारे तो आप कह लें दूसरी नस्ल के सितारे हैं। ये पहले सितारों के सुपरनोवा धमाकों से जो मलबा बिखरा था ना, उससे बने? जी, जिसमें भारी अनासिर शामिल थे जो फिर जमीन जैसे सियारों और बिलाखिर जिंदगी की बुनियाद बने। ठीक है, लेकिन आपने कहा कि एक गर्म बिग बैंग मॉडल में कुछ मसाइल भी थे। हाँ, कुछ बहुत बड़े सवालात थे जिनके जवाब ये मॉडल नहीं दे पाता था। मसलन, कायनात इतनी ज्यादा यकसा क्यों है? आप जिस तरफ भी देखें, बड़े पैमाने पर टेम्परेचर तकरीबन एक जैसा है। ये कैसे हुआ? अच्छा। और दूसरा, उसके फैलने की रफ्तार यानी एक्सपेंशन रेट, वो इतना नाजुक तौर पर मुतवाजन क्यों है? जरा सा तेज होता तो कहकशाएं ना बनती, जरा सा आहिस्ता होता तो ये कब की वापस सुकड़ चुकी होती। ओह। और तीसरा, वो जो इब्तिदाई बहुत ही मामूली सी कसाफत में कमी बेशी थी, वो फ्लक्चुएशंस जिन्होंने बाद में कहकशाओं और क्लस्टर्स को जन्म दिया, वो आई कहां से? क्लासिकी थ्योरी सिंगुलैरिटी पर आकर इन सवालों का जवाब नहीं दे पाती। तो इन मसाइल का हल फिर कैसे निकला? यहां पर एक और आइडिया सामने आया, इन्फ्लेशनरी मॉडल, जिसे एलन गुथ ने पेश किया। इन्फ्लेशन मतलब बहुत तेजी से फैलना? बिल्कुल। उनका ख्याल था कि कायनात बनने के फौरन बाद एक लम्हे के बहुत ही छोटे हिस्से में उसने एक नाकाबिले यकीन हद तक तेज रफ्तार फैलाव का दौर गुजारा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अच्छा, और इससे क्या फायदा हुआ? इससे वो यकसानियत वाला मसला हल हो सकता है, क्योंकि एक छोटा सा हमवार हिस्सा फैलकर हमारी पूरी काबिले मुशाहिदा कायनात बन गई, और ये फैलाव की शरह वाले मसले की भी वजाहत करता है। गुथ ने तो मजाकन ये भी कहा कि कायनात हतमी मुफ्त लंच है, यानी सारी तवानाई और मादा उस फैलाव से ही आ गया। वाह। बाद में आंद्रे लिंदे और दूसरों ने इस मॉडल को और बेहतर बनाया, जिसे क्योस्टिक इन्फ्लेशन कहते हैं। लेकिन क्या ये मॉडल सब कुछ बता देता है? नहीं, ये बुनियादी सवाल हल नहीं करता कि कायनात की इब्तिदाई हालत वैसी ही क्यों थी जैसी इन्फ्लेशन के लिए जरूरी थी, कोई और क्यों नहीं। तो यहाँ फिर क्वांटम का किरदार आता है? बिल्कुल। अब बात आती है क्वांटम ग्रेविटी की, यानी जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को मिलाने की। यहां हॉकिंग और जिम हार्टेल ने रिचर्ड फाइनमैन का सम ओवर हिस्ट्रीज का तस्वुर इस्तेमाल किया। वो क्या है? वो ये कि क्वांटम लेवल पर कोई पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सिर्फ एक रास्ता नहीं लेता, बल्कि तमाम मुमकिन रास्ते बेवक्त लेता है। और साथ में उन्होंने ख्याली वक्त का तस्वुर इस्तेमाल किया। ख्याली वक्त? इमेजिनरी टाइम? ये क्या चीज है? ये वक्त की एक रियाजियाती किस्म है, आम वक्त की तरह नहीं, लेकिन यह हिसाब किताब में सिंगुलैरिटीज से बचने में मदद देता है। अच्छा, तो इन दोनों को मिलाकर उन्होंने क्या नतीजा निकाला? उन्होंने नो बाउंड्री प्रपोजल पेश की। नो बाउंड्री प्रपोजल। ओके, उसका मतलब क्या हुआ आसान लफ्जों में? इसका मतलब यह है कि अगर हम कायनात की तारीख को आम वक्त के बजाय ख्याली वक्त में देखें, तो स्पेस टाइम महदूद तो हो सकता है, फाइनाइट, लेकिन उसका कोई किनारा, कोई सरहद, कोई सिंगुलैरिटी नहीं होगी। कोई किनारा नहीं होगा? मिसाल? बिल्कुल, जमीन की सतह की तरह। देखें, जमीन की सतह महदूद है, इसका रकबा है, लेकिन क्या उसका कोई किनारा है, कोई एज? नहीं, आप चलते जाएं तो वापस वहीं आ जाएंगे। बिल्कुल। तो इसी तरह इस तजवीज के मुताबिक स्पेस टाइम का कोई आगाज या इख्तिताम का नुक्ता नहीं, कोई सिंगुलैरिटी नहीं जहां कवानीन टूट जाएं। तो अगर कोई इब्तिदाई नहीं, तो फिर ये सवाल कि बिग बैंग से पहले क्या था या कायनात कब शुरू हुई, ये सवाल ही बेमाना हो जाता है। बिल्कुल, ये ऐसे ही है जैसे पूछना कि शुमाली कुत्ब से शुमाल में क्या है, सवाल ही गलत है। यानी कायनात मुकम्मल तौर पर खुद कफील है, सेल्फ कंटेन्ड। जी, वो बस है, इट जस्ट इज। इसे ना किसी ने बनाया, ना ये तबाह होगी, कम से कम इस नजरिए के मुताबिक। कवानीन फितरत ही काफी हैं। और क्या ये थ्योरी मुशाहिदात से मुताबिकत रखती है? हाँ, ये तजवीज कायनात के बड़े पैमाने पर यकसा फैलाव की वजाहत करती है और उन इब्तिदाई क्वांटम फ्लक्चुएशंस की भी पेशगोई करती है, जिनसे बाद में कहकशाएं बनी और जिन्हें COB जैसे सैटेलाइट्स ने माइक्रोवेव बैकग्राउंड में देखा भी है। ये तो वाकई जहन को झंझोड़ देने वाला ख्याल है। अगर कायनात खुद कफील है बगैर किसी आगाज या सरहद के, तो फिर खालिक का तस्वर। देखें, यहीं पर फिजिक्स फलसफे से मिलती है। अगर ये तजवीज दुरुस्त है
तो रिवायती मानों में एक ऐसे खालिक की जरूरत बाकी नहीं रहती जो वक्त से बाहर खड़े होकर कायनात को शुरू करे। कायनात खुद ही अपनी मुकम्मल वजाहत बन जाती है। तो खुलासा करें अगर इस बाप का, हॉकिंग ने हमें वक्त की बिल्कुल हुदूद तक पहुंचा दिया, आगाज तक भी और मुमकिना इंजाम तक भी। जी, और उन्होंने बिग बैंग से पहले क्या था वाले सवाल पर ही सवाल उठा दिया। बिल्कुल, जिससे वक्त, सबबियत यानी कॉजेलिटी और तख्लीक के बारे में हमारे जो बुनियादी तसव्वुरात थे वो चैलेंज हो गए। और कायनात का मुस्तकबिल, चाहे वो हमेशा फैलती रहे या वापस सुखड़े, वो भी उन्हीं बुनियादी कानूनों से जुड़ा हुआ है। अगली बार हम एक और बहुत ही दिलचस्प और शायद रोजमर्रा जिंदगी से ज्यादा करीब के सवाल पर बात करेंगे। वक्त का तीर, यानी वक्त हमेशा आगे ही क्यों बढ़ता है, पीछे क्यों नहीं जाता। ये भी एक बड़ा राज है। और जाते जाते सुनने वालों के लिए सोचने का एक नुक्ता, अगर कायनात वाकई खुद कफील और बगैर सरहद के है जैसा हॉकिंग तजवीज करते हैं, तो फिर हम इंसान जो कायनात में मानी या मकसद तलाश करते हैं, क्या ये हमारी अपनी ख्वाहिश है जो हम एक ऐसी हकीकत पर डालने की कोशिश कर रहे हैं जिसका शायद अपना कोई अंदरूनी मकसद या माना है ही नहीं। गहरी बात है, सोचने वाली बात है। हम सब रोजमर्रा जिंदगी में एक चीज का तजुर्बा करते हैं जो शायद सबसे बड़ा मुअम्मा है, वक्त। ये हमेशा आगे ही क्यों चलता है? जी, माजी से मुस्तकबिल की तरफ। हाँ, कभी ऐसा क्यों नहीं होता कि टूटा हुआ कप खुद ही जुड़ जाए और मेज पर वापस आ जाए? बिल्कुल, ये एक बुनियादी सवाल है। स्टीवन हॉकिंग ने अपनी किताब के बाब 9 में, जिसे वक्त का तीर या द एरो ऑफ टाइम कहा गया है, इसी बुनियादी सवाल को समझने की कोशिश की है। जी हाँ। देखें, वक्त के बारे में हमारे ख्यालात तो बदले हैं, न्यूटन से आइंस्टाइन तक, लेकिन ये सवाल वहीं का वहीं है। खासतौर पर इसलिए कि तबीयत के जो बुनियादी कवानीन हैं वो तो वक्त में आगे और पीछे दोनों तरफ काम करते हैं। बिल्कुल, तो फिर ये हमारी दुनिया में ये एक तरफा बहाव क्यों है? यही वो नुक्ता है जहां हॉकिंग बात को खोलते हैं। वो वक्त के इस यकतरफा बहाव को समझने के लिए वो कहते हैं कि 3 मुख्तलिफ तीर हैं। 3 तीर? अच्छा। जी, पहला है थर्मोडायनामिक तीर। ये वो सिमत है जिसमें बेतरतीबी यानी एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। एंट्रोपी यानी बिगाड़, बेतरतीबी। बिल्कुल। इसे समझने के लिए ना एक जिक्सॉ पजल की मिसाल लें। ठीक है। देखें, मुकम्मल तस्वीर वाली हालत तो सिर्फ एक ही हो सकती है ना? हाँ। लेकिन हजारों लाखों हालतें ऐसी हैं जिनमें टुकड़े बिखरे हुए हैं यानी बेतरतीब है। तो कुदरती तौर पर चीजें ज्यादा मुमकिना हालतों की तरफ जाती हैं, यानी बेतरतीब हालतों की तरफ। अच्छा, तो वक्त के साथ चीजें ज्यादा बेतरतीब होती जाती हैं, जैसे कमरा खुद ब खुद साफ नहीं होता, फैल जाता है। बिल्कुल वही बात। ये तो हुआ पहला तीर। ठीक है, और बाकी 2? दूसरा तीर है नफ्सियाती तीर। ये वक्त गुजरने का हमारा अपना अंदरूनी एहसास है। जैसे हम माजी को याद रखते हैं। जी, हम माजी को याद रखते हैं, मुस्तकबिल को नहीं। हम उम्र के साथ बड़े होते हैं, जवान नहीं होते। यहाँ हॉकिंग एक बहुत ही, आप कहें कि दिलचस्प नुक्ता पेश करते हैं। वो हमारे माजी को याद रखने के अमल को एंट्रोपी के बढ़ने से जोड़ते हैं। क्या मतलब? याददाश्त और एंट्रोपी का क्या ताल्लुक? देखिए, जब हमारा दिमाग कोई याद महफूज करता है तो वो एक मुनज़्ज़म हालत बनाता है ना? हाँ, याद एक मुनज़्ज़म चीज है। लेकिन इस अमल में तवानाई खर्च होती है, हरारत पैदा होती है, और ये हरारत कायनात की मजमूई बेतरतीबी में यानी एंट्रोपी में इजाफा करती है। ओह, यानी हमारा वक्त को महसूस करना, याद रखना, ये भी कायनात में एंट्रोपी बढ़ने का ही नतीजा है। एक तरह से हाँ, हमारा नफ्सियाती तजुर्बा भी एंट्रोपी के बढ़ने की समझ से जुड़ा हुआ है। ये तो वाकई हैरानकुन बात है। अच्छा, और तीसरा तीर? तीसरा तीर कायनाती तीर है। ये बहुत सादा है। ये वो समत है जिसमें कायनात फैल रही है। यानी बिग बैंग के बाद से कायनात का मुसलसल फैलना? जी बिल्कुल। तो अब असल गहरा सवाल ये बनता है कि ये तीनों तीर, थर्मोडायनामिक, नफ्सियाती और कायनाती, ये एक ही समत में क्यों इशारा कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? हाँ, ये वाकई बड़ा सवाल है। क्या ये महज इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई गहरी वजह है? हॉकिंग इसकी क्या वजाहत देते हैं? हॉकिंग उसका जवाब अपनी मशहूर कोई सरहद नहीं, नो बाउंड्री कंडीशन तजवीज में देते हैं।
कोई सरहद नहीं, ये क्या चीज है? ये थोड़ा पेचीदा तस्वुर है, लेकिन आसान लफ्जों में बुनियादी ख्याल ये है कि कायनात का आगाज किसी एक नुक्ते, किसी सिंगुलैरिटी से नहीं हुआ जहां कवानीन जवाब दे जाएं। अच्छा, तो फिर कैसे? बल्कि ये वक्त और जगह में एक हमवार, एक बंद सतह की तरह शुरू हुई। जैसे जमीन की सतह है, उसका कोई किनारा नहीं है ना, बस एक कुतुब शमाली जैसा एक हमवार नुक्ता आगाज है। इस तजवीज के मुताबिक कायनात अपनी बिल्कुल इब्तिदाई हालत में इंतहाई मुनज्जम और हमवार थी। गो के क्वांटम उतार चढ़ाव की वजह से बिल्कुल एक जैसी नहीं थी, थोड़ा फर्क था। तो अगर कायनात एक इंतहाई मुनज्जम हालत से शुरू हुई? ओह, मैं समझा। चूंकि आगाज बहुत मुनज्जम था, तो वक्त गुजरने के साथ बेतरतीबी का बढ़ना तो लाजमी था। बिल्कुल। इससे थर्मोडायनामिक तीर की वजाहत हो गई। जी हाँ, एक इंतहाई मुनज्जम आगाज लाजमी तौर पर वक्त के साथ बढ़ती हुई बेतरतीबी की तरफ ले जाता है, और जैसा हमने अभी बात की, हमारा नफ्सियाती तीर भी उसी थर्मोडायनामिक तीर की पैरवी करता है, क्योंकि याददाश्त वगैरह एंट्रोपी बढ़ाते हैं। सही। अब रहा कायनाती तीर, यानी कायनात के फैलाव से ताल्लुक। यहाँ हॉकिंग कमजोर एंथ्रोपिक उसूल, वीक एंथ्रोपिक प्रिंसिपल का जिक्र करते हैं। एंथ्रोपिक उसूल, ये क्या है? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता कि हम चीजें ऐसी देखते हैं क्योंकि अगर वो ऐसी ना होती तो हम उन्हें देखने के लिए मौजूद ही ना होते? हाँ, ये एतराज आम है, लेकिन इसे यूं समझें कि ये कोई मुकम्मल वजाहत नहीं, बल्कि एक इंतखाबी असर है, एक सिलेक्शन इफेक्ट है। अच्छा, मतलब ये कि हमारी जैसी ज़हीन जिंदगी जो तवनाई इस्तेमाल करती है, मालूमात पर अमल करती है, वो लाजमी तौर पर एंट्रोपी पैदा करती है। उसे एक मजबूत थर्मोडायनामिक तीर की जरूरत होती है। ठीक है। और ये हालात हॉकिंग के मुताबिक सिर्फ कायनात के फैलते हुए मरहले में ही मुमकिन है। सिर्फ ऐसी कायनात में ही हम जैसे मुशाहिदा करने वाले वजूद में आ सकते हैं जो ये सवाल पूछ सकें। तो फैलती हुई कायनात ही जिंदगी के लिए साजगार है, जो एंट्रोपी बढ़ाती है, और इसीलिए हम उसे फैलता हुआ देखते हैं। जी, एक दिलचस्प बात यह भी है कि हॉकिंग ने पहले ये सोचा था कि शायद अगर कायनात फैलने के बजाय सिकुड़ना शुरू कर दे तो वक्त का तीर उल्टा हो जाएगा, एंट्रोपी कम होने लगेगी। ओह, वक्त उल्टा चलने लगेगा। हाँ, ये उनका इब्तिदाई ख्याल था, लेकिन बाद में उसी कोई सरहद नहीं वाली शर्त पर मजीद काम करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि नहीं, अगर कायनात सिकुड़े भी तब भी एंट्रोपी बढ़ती ही रहेगी, वक्त का तीर अपनी सिमत नहीं बदलेगा। अच्छा, तो ये तो और भी पक्का हो गया कि वक्त आगे ही चलेगा। तो खुलासा ये हुआ कि वक्त का ये जो आगे की तरफ बहाव है, ये कोई बुनियादी कानून नहीं है। नहीं, ये कोई बुनियादी कानून नहीं, बल्कि ये कायनात की बहुत ही इब्तिदाई इंतहाई मुनज्जम हालत का नतीजा है, जिसकी वजाहत हॉकिंग की कोई सरहद नहीं तजवीज करती है। जी। और इस मुनज्जम आगाज की वजह से एंट्रोपी वक्त के साथ बढ़ती है। ये हुआ थर्मोडायनामिक तीर। बिल्कुल। और हमारा वक्त का नफ्सियाती तजुर्बा, हमारी याददाश्त, वो भी उसी से जोड़ा है। जी हाँ। और कायनात का फैलाव यानी कायनाती तीर, वो गोया एक स्टेज फराहम करता है जिस पर ये सब मुमकिन हो पाता है और जिसमें हमारी जैसी जिंदगी पनप सकती है। आपने बिल्कुल सही खुलासा किया। इन तीनों तीरों का एक ही सिमत में होना महज इत्तफाक नहीं है, ये कायनात की इब्तिदा की गहरी खुसूसियात और हम जैसे मुशाहिदा करने वालों के वजूद के लिए लाजमी शराइत का नतीजा है। हॉकिंग ने बड़ी खूबसूरती से वक्त के इस रोजमर्रा के तजुर्बे को कायनात की बड़ी कहानी से, उसके आगाज से, उसकी हालत से जोड़ दिया है। ये वाकई गहरी बात है और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि क्या कायनात की हर चीज जानी जा सकती है? क्या हमारी समझ की कोई हद है? जी, ये एक अहम सवाल है। क्या इल्म की कोई इंतहा है? शायद ये वो सवाल है जिस पर हम अगली बार बात करेंगे। क्या सब कुछ जानना मुमकिन है? आज हम स्टीफन हॉकिंग की किताब के 10वें बाब पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। जी, पिछली बार हमने वक्त की सिमत पर बात की थी कि ये एक ही तरफ क्यों चलता है। बिल्कुल। और अब हॉकिंग एक और उससे भी ज्यादा चौंका देने वाला सवाल उठा रहे हैं कि क्या हम वक्त में सफर कर सकते हैं? हाँ, बाब 10 का उन्वान ही है वर्म होल्स और टाइम ट्रेवल। तो क्या कायनात में जमानो मकान में शॉर्टकट्स हो सकते हैं? यानी वर्म होल्स। और क्या ये हमें माजी या मुस्तकबिल में ले जा सकते हैं? यही सवाल है।
देखें, ये बाब आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी के नजरिए पर मबनी है। अच्छा, तो वर्म होल्स कम से कम थ्योरी में ऐसी सुरंगें हैं जो खला में या शायद वक्त में भी दो बहुत दूर के मुकामात को जोड़ सकती हैं। वाह। लेकिन हॉकिंग सिर्फ आप कह लें कयास आराई नहीं कर रहे, वो बहुत संजीदगी से उन तभी शराइत को देखते हैं। यानी फिजिक्स क्या कहती है इस बारे में? जी, और क्वांटम असरात क्या होंगे, और वो तजादात, पैराडॉक्सेस जो इस सारे आइडिया को बहुत बहुत पेचीदा बना देते हैं। तो फिर चलें इस दिलचस्प मौजू को जरा खोलते हैं। वक्त क्या है? क्या ये बस एक सीधी लकीर है जिस पर हम चल रहे हैं, या इसमें मोड़, शाखें, सुरंगें, ये सब मुमकिन है? हाँ, H.G. वेल्स ने तो बहुत पहले सोचा था इस बारे में। साइंस फिक्शन में तो ये भरा पड़ा है। लेकिन फिजिक्स में इसका पहला आप कह लें संजीदा इशारा 1949 में आया, कर्ट गोडल ने, जो एक मशहूर मंतिकदान थे। ओह, गोडल। जी, उन्होंने आइंस्टाइन की इक्वेशंस का एक हल निकाला, एक ऐसी कायनात जो घूम रही थी। घूमती भी कायनात? हाँ, और उसमें थ्योरेटिकली माजी में सफर मुमकिन था। ये एक धमाका खेज बात थी कि जनरल रिलेटिविटी खुद ऐसी अजीब चीजों की इजाजत देती है। लेकिन हमारी कायनात तो ऐसी नहीं घूम रही है ना? नहीं, हमारे मुशाहिदात तो यही बताते हैं। तो ये वाला रास्ता तो शायद नहीं। दूसरे आइडियाज भी है, जैसे घूमते हुए ब्लैक होल का अंदरूनी हिस्सा, या वो कायनाती तारे, कॉस्मिक स्ट्रिंग्स। और एक वो रास्ता जो साइंस फिक्शन में बहुत दिखाते हैं, रोशनी से तेज सफर। हाँ, FTL, फास्टर देन लाइट। रिलेटिविटी कहती है कि अगर कोई चीज रोशनी से तेज चली जाए तो वो वक्त में पीछे जा सकती है। बिल्कुल, मौसर तरीके से वो माजी में पहुंच जाएगी। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी रुकावट है, ठीक है? हाँ, सबसे बड़ा मसला तवानाई का है। किसी भी चीज को जिसका मास हो, उसे रोशनी की रफ्तार तक पहुंचाने के लिए लामहदूद तवानाई चाहिए, जो कि नामुमकिन है। अमली तौर पर नामुमकिन है। तो ये रास्ता तो बंद ही समझें। यहीं से फिर वर्म होल ज्यादा दिलचस्प हो जाते हैं। अच्छा, तो वर्म होल्स पर वापस आते हैं। ये असल में आइंस्टाइन और नाथन रोजन का 1935 का एक आइडिया था, ब्रिजेस का। यानी पुल? जी, जमानो मकाम में शॉर्टकट्स, जो शायद अरबों नूरी साल का फासला चंद कदमों में तय करवा दे, या शायद वक्त में भी। शॉर्टकट्स तो हमेशा अच्छे लगते हैं, लेकिन उन्हें खोला रखना ये कैसे मुमकिन होगा? कोई मसला तो होगा। बिल्कुल मसला है। उन्हें खुला रखने के लिए या वक्त में सफर करने के लिए इस्तेमाल करने के लिए जमानो मकान को एक खास अंदाज में मोड़ना पड़ेगा। ठीक है। और इसके लिए हमें चाहिए मनफी तवानाई किसाफत, नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी, या मनफी खम वाला मादा। मनफी तवानाई, ये क्या चीज है? आम मादा तो मुस्बत तवानाई रखता है। जी, सितारे, सयारे, हम सब मुस्बत तवानाई की साफत रखते हैं, और हम जमानो मकान को एक खास तरीके से मोड़ते हैं। मनफी तवानाई वाला मादा वो उसे उल्टा मोड़ेगा। ये बहुत ही आप कह लें एग्जॉटिक या गैर मामूली चीज है। तो क्या ऐसी कोई चीज वाकई हो सकती है? मनफी तवानाई, ये तो सुनने में ही अजीब है। क्लासिक फिजिक्स में तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन क्वांटम थ्योरी में उसकी झलक मिलती है। क्वांटम में? कैसे? कैसिमिर इफेक्ट है। लेबोरेटरी में ये दिखाया जा चुका है। अच्छा, वो क्या है? जब आप दो धाती प्लेटों को बहुत ही करीब रखते हैं, बिल्कुल करीब, तो उनके बीच की खाली जगह में जो मजाजी जर्रात होते हैं, वर्चुअल पार्टिकल्स, जो हर वक्त बनते बिगड़ते रहते, वही, इनकी कुछ मखसूस इक़साम वहां महदूद हो जाती हैं। बाहर के मुकाबले में अंदर कम जर्रात होते हैं। इस फर्क की वजह से प्लेटों के बीच एक कशिश पैदा होती है और उस इलाके में तवानाई की कसाफत मनफी हो जाती है। ओह, वाकई? हाँ, ये बहुत कम होती है, लेकिन ये साबित करती है कि मनफी तवानाई कसाफत फिजिक्स के कवानीन के खिलाफ नहीं। ठीक है, तो क्वांटम दुनिया में ये मुमकिन है? मान लिया कि हमने मनफी तवानाई से वर्महोल बना भी लिया, वक्त में सफर मुमकिन हो गया, तो फिर वो सवाल? हाँ, वो बड़े सवाल। अगर मुस्तकबिल में टाइम मशीन बन गई तो वहां से लोग अब तक क्यों नहीं आए? बिल्कुल। और वो दादा वाला पैराडॉक्स, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, कि अगर कोई माजी में जाकर अपने दादा को अपनी दादी से मिलने से पहले ही खत्म कर दे, तो वो खुद कैसे पैदा होगा? ये तो बड़ा चक्कर है। इसके दो मुमकिना जवाब सोचे गए हैं। एक है मुस्तकिल तारीखों का नजरिया, कंसिस्टेंट हिस्ट्रीज, यानी वो पत्थर पर लकीर है। अच्छा।
दूसरा है मुतबादिल तारीखों का मफरूजा, ऑल्टरनेटिव हिस्ट्रीज। उसके मुताबिक जब आप माजी में जाते हैं तो आप एक नई मुतवाजी टाइमलाइन, एक अलग तारीख बना देते हैं। यानी असल तारीख वैसी ही रहती है? जी, आप अपनी अलग तारीख में चले जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि रिचर्ड फाइनमैन का जो सम ओवर हिस्ट्रीज का नजरिया है क्वांटम मैकेनिक्स में, हाँ, वो तो बहुत मशहूर है। वो पहले वाले नजरिए की तरफ इशारा करता है, यानी कंसिस्टेंट हिस्ट्रीज की तरफ। ये भी बहुत दिलचस्प है कि हॉकिंग ये भी बताते हैं कि क्वांटम लेवल पर, जैसे वो हॉकिंग रेडिएशन है, ब्लैक होल से जर्रात का निकलना, हाँ, वहाँ वर्चुअल पार्टिकल्स का रवैया ऐसा लगता है जैसे वो वक्त में पीछे जा रहे हों। बिल्कुल, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, खुर्दबीनी सतह पर ऐसे इशारे मिलते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बड़े पैमाने पर मुमकिन है, मतलब एक इंसान या एक खलाई जहाज के लिए? यही असल सवाल है। यहाँ हॉकिंग का अपना एक नजरिया आता है, क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन कंजेक्चर, तारीख के तहफ्फुज का कयास। जी, ये कहता है कि शायद फिजिक्स के कवानीन में ही कोई ऐसा हिफाजती निजाम है जो बड़ी चीजों को माजी में जाने से रोकता है। कैसे? नजरिया ये है कि जैसे ही आप ज़मानो मकान को इतना मोड़ेंगे कि माजी का सफर मुमकिन होने लगे, तो वो वर्चुअल पार्टिकल्स जो हमने जिक्र किए, कैज़िमियर इफेक्ट वाले, हाँ, वो शायद हकीकी बन जाएंगे और इतनी ज्यादा तवानाई पैदा करेंगे कि वो या तो वर्म होल को ही तबाह कर देंगे या ज़मानो मकान को वापस इस तरह बदल देंगे कि सफर नामुमकिन हो जाए। गोया फिजिक्स खुद अपनी तारीख को बचा रही है। कुछ ऐसा ही लगता है, एक तरह की साजिश। तो अगर खुलासा करें, वर्म होल्स, टाइम मशीन्स, ये सब रियाजियाती तौर पर शायद मुमकिन हो कागज पर। हाँ, मसावातें शायद इजाजत देती हों, लेकिन उन्हें बनाने के लिए हमें वो अजीबोगरीब मनफी तवानाई वाला मादा चाहिए, बेतहाशा तवानाई चाहिए। और फिर वो सबबियत, कॉजालिटी का मसला, वजह और असर का ताल्लुक टूटने का खतरा, दादा पैराडॉक्स वगैरह। जी। और जैसा कि हॉकिंग याद दिलाते हैं, सिर्फ इसलिए कि फिजिक्स के कवानीन किसी चीज से मना नहीं करते, जरूरी नहीं कि कुदरत हमें वो करने की इजाजत भी दे। यह बहुत अहम नुक्ता है। बिल्कुल। ये सारी बहस हमें एक और गहरे सवाल की तरफ ले जाती है। क्या इन सब चीजों की कशिश शुक्ल, क्वांटम मैकेनिक्स, ज़मानो मकान, इन सब की कोई एक वाहिद मुत्तहिदा वजाहत है? यानी एक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग? जी हाँ, क्या कोई ऐसा नजरिया है जो इन सब को एक साथ बयान कर सके? और ये सोचने वाली बात रह जाती है कि अगर वाकई क्वांटम सतह पर वक्त में पीछे जाने की हल्की सी झलक मुमकिन है, तो वो क्या चीज है जो इसे बड़े पैमाने पर होने से रोकती है? क्या ये क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन वाकई हर हाल में काम करती है या इसमें भी कोई लूप होल हो सकता है? ये सवाल अभी बाकी हैं। आज हम स्टीफन हॉकिंग की किताब के 11वें बाब में बात कर रहे हैं, तबीयत का इत्तेहाद। ये शायद साइंस की सबसे बड़ी तलाश है कि कायनात के सारे कवानीन को एक ही नजरिए में कैसे सुमोया जाए। जी बिल्कुल। हॉकिंग इस बाब में आइंस्टाइन के नजरिया इजाफियत, जो बड़ी चीजों का कशाओं वगैरह को देखता है, और क्वांटम मैकेनिक्स जो एटम की दुनिया पर लागू होता है, उनको जोड़ने की जो कोशिश है उसका जिक्र करते हैं। सही। तो बुनियादी सवाल यही है कि क्या ये चारों कुव्वतें, कशिश सकल, बर्क नातीसियत और 2 न्यूक्लियाई कुव्वतें, क्या ये सब एक ही आप कहें खूबसूरत फॉर्मूले से बयान हो सकती हैं? बिल्कुल, और ये कोई नया ख्वाब नहीं है। आइंस्टाइन ने तो अपनी जिंदगी के आखिरी तकरीबन 30 साल इसी में लगा दिए। 30 साल? जी, मगर वो कामयाब नहीं हो सके। एक तो उस वक्त तक देखें न्यूक्लियर कुव्वतों का इतना इल्म नहीं था, और दूसरी बात वो खुद क्वांटम मैकेनिक्स पर पूरी तरह यकीन नहीं रखते थे। अच्छा, हालांकि उन्होंने खुद इसकी बुनियाद रखी थी। जी, सितम ज़रीफी यही है। और तारीख में पहले भी ऐसे लम्हे आए हैं जब लगा कि बस मंजिल करीब है। वो 1928 में मैक्स बोर्न वाली बात। हाँ, उन्होंने कहा था तबैयात 6 महीने में खत्म हो जाएगी। इतने पुरजोश थे वो लोग। जी, जिराक के इलेक्ट्रॉन वाली मसावात के बाद। मगर फिर न्यूट्रॉन दरियाफ्त हुआ, नई कुव्वतें सामने आईं, तो पता चला कि कहानी अभी बाकी है। तो असल रुकावट क्या है इन दोनों नजरियात में, यानी इजाफियत और क्वांटम में? देखें, बुनियादी फर्क है। अमूमी इजाफियत वो एक क्लासिकी नजरिया है, हमवार स्पेस टाइम। ठीक। जबकि क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि हर चीज छोटे छोटे पैकेट्स में है, क्वांटा में, और उसमें वो असूल गैर यकीनी भी है। यानी आप हर चीज एक साथ नहीं जान सकते। बिल्कुल। तो जब इनको मिलाने की कोशिश करते हैं तो अजीब मसले खड़े हो जाते हैं। अजीब मसले? जैसे कि?
एक बड़ा मसला है मजाजी ज़र्रात का। क्वांटम थ्योरी कहती है कि खाली खला भी खाली नहीं, उसमें हर वक्त ज़र्रात बनते और खत्म होते रहते हैं। अच्छा, थ्योरी के मुताबिक उनकी तवानाई और कुमियत वो लामहदूद होनी चाहिए। लामहदूद मतलब इन्फिनिट? जी, और अगर ऐसा हो तो उनकी कशिश सकल कायनात को आप समझें एक नुक्ते में सिकेड़ देगी, जो ज़ाहिर नहीं होता। ओह, तो ये लामहदूदियत, ये इन्फिनिटीज, ये बड़ा मसला है। क्या ये दूसरे नजरियात में नहीं आते? आती हैं, मगर वहां एक तकनीक है, रेनॉर्मलाइजेशन, वो काम कर जाती है। रेनॉर्मलाइजेशन ये क्या है? ये यूं समझें एक रियाजियती चाल है, एक लामहदूदियत को दूसरी से काट देना। थोड़ा मशकूक तरीका है, लेकिन बिजली, मैग्नेटिसियत, न्यूक्लियर कुव्वतों के लिए ये कमाल का काम करता है। मगर कशिश सुकल के लिए नहीं? नहीं, उमूमी इजाफियत के साथ ये नाकाम हो जाता है। वहां लामहदूदियतें बाकी रहती हैं। तो फिर क्या हुआ? कोशिशें रुक गई? नहीं, साइंसदान इतनी जल्दी हार नहीं मानते। 70 की दहाई में सुपर ग्रेविटी का आइडिया आया। सुपर ग्रेविटी? जी, ख्याल ये था कि हर मालूम जर्रे का एक सुपर पार्टनर है, तो ग्रेविटॉन यानी कशिश तकल वाले जर्रे को दूसरों के साथ मिलाकर सुपर पार्टिकल बनाया जाए, ताकि मुख्तलिफ मजाजी जर्रात की लामहदूदियतें एक दूसरे को कैंसिल कर दें। अच्छा, दिलचस्प ख्याल है। था तो दिलचस्प, मगर ये थ्योरी बहुत ही पेचीदा निकली, और जो जर्रात इससे निकलने चाहिए थे वो हमें नजर नहीं आए, तो ये ज्यादा चली नहीं। तो सुपर ग्रेविटी भी नहीं चली। फिर अगला कदम क्या था? कोई नया आइडिया? बिल्कुल, और ये वाकई एक आप कहें इनकलाबी आइडिया था। 1984 के आसपास स्ट्रिंग थ्योरी सामने आई। स्ट्रिंग थ्योरी, ये नाम तो बहुत सुना है। जी, इसका बुनियादी ख्याल ये है कि कायनात की जो असल बुनियाद है वो नुक्ते जैसे जर्रात नहीं, बल्कि नन्हे मुन्ने मुर्तइश धागे हैं, स्ट्रिंग्स। धागे? सच में? जी, थ्योरी यही कहती है। ये खुले भी हो सकते हैं, बंद लूप की शक्ल में भी, और जो मुख्तलिफ जर्रात हम देखते हैं वो इन धागों की मुख्तलिफ वाइब्रेशंस हैं। वाह, यानी जैसे गिटार के तार से मुख्तलिफ सुर निकलते हैं? बिल्कुल वैसी ही मिसाल है, और जर्रात का मिलना या टूटना वो इन धागों का जुड़ना और टूटना है। ये तो बिल्कुल ही अलग तस्वीर है कायनात की। है ना? दिलचस्प बात यह कि ये थ्योरी पहले 60 की दहाई में बनी थी, मजबूत न्यूक्लियाई कुव्वत के लिए, मगर कामयाब नहीं हुई। फिर 1974 में शर्क और श्वार्ट्ज ने दिखाया कि अगर इन धागों का तनाव मतलब टेंशन बहुत ज्यादा हो तो ये कशिश सिकल को बयान कर सकती है। अच्छा। और 1984 में ये दोबारा मकबूल हुई क्योंकि सुपर ग्रेविटी से कुछ नहीं हो रहा था, और श्वार्ट्ज और ग्रीन ने दिखाया कि स्ट्रिंग थ्योरी कुछ बुनियादी मसाइल हल कर सकती है, जिनमें लामहदूदियत का मसला भी शामिल था। लेकिन इस स्ट्रिंग थ्योरी के अपने भी तो मसाइल है ना, वो इजाफी जहतों वाली बात, डायमेंशंस। हाँ, ये इसका सबसे अजीब पहलू है। थ्योरी रियाजियाती तौर पर तभी सही बैठती है जब कायनात में 10 या कुछ वर्जन में 26 जहतें हों। 10 या 26? लेकिन हम तो सिर्फ 4 ही देखते हैं, 3 जगह की और 1 वक्त की। बिल्कुल, तो थ्योरी कहती है कि बाकी जहतें इतनी छोटी जगह में ऐसे लिपटे हुए हैं कि हम उन्हें महसूस नहीं कर सकते। जैसे दूर से एक तनका या पाइप सीधा लगता है, मगर करीब से उसकी गोलाई नजर आती है। तो ये इजाफी जहतें हैं कहाँ और हम उन्हें क्यों नहीं देखते? इसका एक मुमकिन जवाब, जो थोड़ा फलसफियाना है, वो एंथ्रोपिक प्रिंसिपल है। एंथ्रोपिक प्रिंसिपल? जी, यानी कायनात ऐसी है क्योंकि अगर मुख्तलिफ होती तो हम यहाँ ये सवाल पूछने के लिए मौजूद ही ना होते। ऐसा लगता है कि जिंदगी जैसी पेचीदा चीजें सिर्फ 3+1 जहतों में ही बन सकती हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, 2 मकानी जहतों में आपका निजाम इन्हिजाम आपको 2 हिस्सों में काट देगा, और 3 से ज्यादा मकानी जहतों में सैयारों के मदार और एटम वो मुस्तहकम नहीं रह पाते। ये तो बड़ी गहरी बात है। तो हॉकिंग आखिर में क्या नतीजा अखज़ करते हैं? क्या हमें ये हतमी नजरिया मिलेगा? हॉकिंग 3 इम्कानात बताते हैं। पहला, एक मुकम्मल वाहिद मुतहिदा नजरिया मौजूद है जिससे हम आखिरकार दरियाफ्त कर लेंगे। ठीक। दूसरा, नजरियात का एक लामुतनाही सिलसिला है। हम बेहतर से बेहतर नजरिए बनाते जाएंगे, मगर कोई एक हतमी नजरिया नहीं होगा। और तीसरा? तीसरा, कोई नजरिया है ही नहीं। कायनात बुनियादी तौर पर बेतरतीब है। हॉकिंग खुद पहले इम्कान की तरफ ज्यादा माइल हैं।
ان کا خیال ہے کہ ایک حد ہے جسے پلانک توانائی کہتے ہیں، اس پر پہنچ کر شاید مزید بنیادی ساخت کی گنجائش ہی نہ رہے۔ تو یہ عظیم خواب، یہ خوبصورت تلاش اب بھی جاری ہے؟ ابھی منزل نہیں آئی؟ بالکل۔ کشش سکل کو کوانٹم میکینکس اور دوسری قوتوں سے پوری طرح جوڑنا یہ ابھی باقی ہے۔ یہ تلاش جاری ہے، اور یہ صرف سائنس نہیں، یہ ایک طرح سے فلسفہ بھی ہے کہ کیا واقعی کائنات اتنی سادہ، اتنی خوبصورت ہے کہ ایک ہی اصول سے چلتی ہو؟ اور اگلے یعنی آخری باب میں ہاکنگ انہی سوالوں پر آئیں گے کہ اس سب کا مطلب کیا ہے، ہم یہ متحدہ نظریہ کیوں ڈھونڈ رہے ہیں، اور اگر یہ مل گیا تو؟ جی، اس کے کیا معنی ہوں گے ہمارے لیے، کائنات میں ہماری جگہ کے لیے؟ چلے اس پر اگلی بار بات کریں گے۔ بالکل۔ اور جاتے جاتے ایک سوال سامعین کے سوچنے کے لیے، فرض کریں ہم کائنات کا وہ حتمی قانون جان بھی لیں، لیکن کوانٹم غیر یقینی کی وجہ سے یا نظام کی پیچیدگی کی وجہ سے ہم مستقبل کی ہر چیز کی پیشگوئی پھر بھی نہ کر سکیں، تو کیا اس دریافت سے ہمارے وجود کو سمجھنے کے انداز میں کوئی واقعی بنیادی فرق پڑے گا؟ تو آج ہم اسٹیفن ہاکنگ کی مشہور کتاب وقت کی مختصر تاریخ کے بالکل آخری باب پر بات کر رہے ہیں۔ یہ اختتامیہ ہے؟ جی ہاں، اور اس باب میں ہاکنگ طبیعیات کے مساوات سے تھوڑا آگے نکل کر کائنات کو سمجھنے کی جو انسانی خواہش ہے نا، اس پر غور کرتے ہیں۔ بالکل۔ وہ بنیادی سوال پوچھتے ہیں، جیسے کائنات اصل میں ہے کیا، ہم کہاں ہیں اس میں، یہ سب آیا کہاں سے، اور یہ ایسا ہی کیوں ہے؟ مطلب گفتگو اب طبیعیات سے زیادہ فلسفے کی طرف جا رہی ہے۔ صحیح۔ اور وہ شروع کرتے ہیں پرانے زمانے کے تصورات سے، جیسے وہ کہانی ہے نا کہ زمین کچھوؤں کے اوپر ٹکی ہوئی ہے، اس کا موازنہ وہ آج کی سپر اسٹرنگ تھیوری جیسی پیچیدہ چیزوں سے کرتے ہیں۔ ہاں، وہ دکھاتے ہیں کہ کیسے سوچ بدلی۔ پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ ہر چیز وہ منمودی روحوں کے زیر اثر ہے۔ بالکل۔ پھر انسان نے باقاعدگیوں، قوانین کو تلاش کرنا شروع کیا، خاص طور پر آسمان میں، جیسے سیاروں کی حرکت، وہ تو بڑی قابل پیشن گوئی ہے۔ اور اسی ترتیب کی تلاش سے پھر 19ویں صدی میں وہ لپلاس کا نظریہ آیا، سائنسی جبریت کا۔ جی، سائنسی جبریت، یعنی اگر آپ کو کائنات کی حالت ایک لمحے میں پتا ہو تو آپ قوانین سے اس کا پورا مستقبل بتا سکتے ہیں۔ اچھا، لیکن لیپلاس نے یہ چھوڑ دیا تھا کہ قوانین کون چنتا ہے اور شروع کی حالت کیا تھی، وہ کام خدا کا ہے۔ ہاں، مگر پھر یہ تصویر ہم جانتے ہیں ادھوری نکلی، کوانٹم میکینکس آ گئی اور اس کا وہ اصول غیر یقینی۔ او ہاں، یعنی آپ ایک ہی وقت میں کسی ذرے کی صحیح جگہ اور رفتار دونوں ایک ساتھ نہیں جان سکتے۔ بالکل۔ کوانٹم نظریات تو ذرات کو لہروں کی طرح دیکھتے ہیں، ایک امکاناتی لہر۔ نظریات تو جبری ہیں، وہ لہر کے ارتقاء کا قانون بتاتے ہیں۔ اچھا، گڑبڑ تب ہوتی ہے جب ہم اس لہر کو اپنی پرانی ذرات والی پوزیشن اور رفتار کے تصور پر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاید یہ ہماری سمجھ کی غلطی ہو۔ تو اب سائنس کا مقصد ایسے قوانین ڈھونڈنا ہے جو اس غیر یقینی کی حدود میں رہتے ہوئے کام کریں۔ جی ہاں، لیکن وہ سوال تو وہیں کا وہیں ہے، یہ قوانین اور شروع کی حالت آئی کہاں سے، یہ انتخاب کیسے ہوا؟ ہاکنگ پھر کشش ثقل یعنی گریوٹی کی اہمیت بتاتے ہیں کہ وہ کائنات کی بڑی ساخت کو کنٹرول کرتی ہے۔ درست۔ اور آئنسٹائن کا عمومی نظریہ اضافیت کہتا ہے کہ ماضی میں ایک لامحدود کثافت کی حالت یعنی بگ بینگ ضرور ہوئی ہوگی، وہ وقت کا آغاز تھا۔ اور مستقبل میں اگر کائنات سکڑی تو بگ کرنچ یا بلیک ہولز کے اندر کی وہ اکائیتیں، سنگولیرٹیز، وہ وقت کا اختتام۔ ممکنہ طور پر، اور ان جگہوں پر یعنی اکائیتوں پر ہمارے سارے جانے پہچانے قوانین کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہاں خالق کے لیے کوئی کردار نکلتا ہے، انتخاب کی گنجائش؟ بات یہاں دلچسپ ہو جاتی ہے۔ بہت زیادہ۔ لیکن جب کوانٹم میکینکس کو عمومی نظریہ اضافیت سے ملانے کی کوشش کی جاتی ہے نا، تو ایک اور بالکل نیا امکان سامنے آتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ زمان و مکان یعنی اسپیس ٹائم مل کر شاید ایک محدود
4 जिहती खला बनाते हों जिसकी कोई सरहद, कोई किनारा, कोई अकायत ना हो। जमीन की सतह की तरह, लेकिन ज्यादा जिहतों में। बिल्कुल वैसी ही मिसाल है। ये कोई सरहद नहीं वाली तजवीज है और ये कायनात की कई खुसूसियात, जैसे इसका बड़े पैमाने पर यकसां होना या वक्त का तीर, इन सब की वजाहत कर सकती है। अच्छा, तो अगर ऐसा है तो कायनात मुकम्मल तौर पर खुद कफील हो गई, उसे शुरू करने के लिए किसी की जरूरत नहीं। जी, यही इसका सबसे बड़ा नुक्ता है। अगर ये कोई सरहद नहीं तजवीज ठीक है, तो फिर खुदा के लिए या खालिक के लिए इब्तिदाई हालात चुनने की आजादी नहीं बचती। शायद सिर्फ कवानीन का इंतखाब बाकी रह जाता है। यानी हो सकता है सिर्फ एक ही मुमकिना मुत्तहिदा नजरिया हो, जैसे वो हेटेरोटिक स्ट्रिंग थ्योरी का जिक्र करते हैं। हाँ, या कोई और उम्मीदवार, एक ऐसा नजरिया जो खुद अपनी जगह मुकम्मल हो और ऐसी पेचीदा चीजों जैसे हम इंसान के वजूद की इजाजत दे जो इन कानूनों को समझने की कोशिश कर सकें। लेकिन फिर हॉकिंग हमें वापस उन गहरे सवालों पर ले आते हैं। इन मसावातों में जान कौन डालता है? कायनात में वजूद में आने की जहमत ही क्यों की? बिल्कुल। क्या ये मुत्तहिदा नजरिया खुद इतना ताकतवर है कि वो अपने वजूद की वजह बन जाए, या इसे फिर भी खालिक की जरूरत है? और अगर खालिक है तो उसे किसने बनाया? ये तो वही पुराना सवाल है। हॉकिंग कहते हैं कि साइंसदान उमूमन क्या पर तवज्जो देते हैं, जबकि फलसफी क्यों पूछते हैं, लेकिन वो साइंस की रफ्तार के साथ चल नहीं पाए। तो हॉकिंग की उम्मीद क्या है आखिर में? उनकी उम्मीद ये है कि अगर हम कभी वो एक मुकम्मल नजरिया दरियाफ्त कर लें तो वो इतना सादा और जामिया हो कि सब इसे समझ सकें। आम लोग, फलसफी, साइंसदान सब मिलकर इस बहस में हिस्सा ले सकें कि हम और ये कायनात आखिर क्यों मौजूद हैं। तो इस सब का हासिल क्या निकला? एक मुकम्मल नजरिए की दरियाफ्त क्या सिर्फ तबियत का खात्मा है? हॉकिंग के नजदीक ये शायद उससे कहीं बढ़कर है। ये खुदा के जहन को जानने जैसा हो सकता है। तबियत से फलसफे की गहराइयों में एक छलांग। वाह। और एक आखिरी बात सोचने के लिए, अगर एक मुत्तहिदा नजरिया ही कायनात की वजह है, तो क्या उससे कायनात का जो सहर है वो कम हो जाता है, या ये जानकर कि हकीकत की एक अंदरूनी मंतिक है, ये सहर और बढ़ जाता है? ये तजस्सुस तो बहरहाल जारी रहेगा। बिल्कुल। इस गहरी गुफ्तगू को यहीं रोकते हैं। वैसे इससे पहले कि हम खत्म करें, एक छोटी सी गुजारिश। जी। अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम उर्दू में इस तरह का फलसफियाना और साइंसी मवाद लाते रहें, तो आप हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ, आपकी मदद बहुत अहम है। पाकिस्तान में रहने वाले दोस्त डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ट आईडी के जरिए ताउन कर सकते हैं, और बैरून मुल्क मुकीम अहबाब सुपर थैंक्स या चैनल मेंबरशिप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके ताउन से ही हम आजादाना तौर पर बेहतर मवाद बना पाते हैं। तो जरूर गौर कीजिएगा। अगली गुफ्तगू तक सोचते रहें और मुतजस्सिस रहें।